ہوں کہ ہر دن آپ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو چنیں اور اس پہ تھوڑی بہت بات ہوگی. اس کے علاوہ بہت جب کوئی کمنٹس آتے ہیں تو اسماعیل انسان صاحب، دیکھتا ہے تو کہ آپ اس کا میں فیس کون آپ کا فیس نہیں سی آ رہا وجہ ہے کون سی نہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ذہنوں پہ چھائے نہیں ہے لالچ کے سائے. ہمارے ذہنوں پہ چھائے نہیں ہے لالچ کے سائے. ہم جو محسوس کرتے ہیں وہی بیاں کرتے ہیں. تو آج اس شعر سے ہم تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں. بعد میں کہیں بیچ بیچ میں ایک ایک شعر بھی ہم آج بولتے رہیں گے. تو اگر یہ لون زلف اسماعیل بابر صاحب ہے السلام تو اس کو علیکم، لانے کی آپ کوشش آواز کریں ڈبل بیچ آ میں، رہی ہے شفیع صاحب۔ کیونکہ یہ ان کا شفیع چہرہ ہر صاحب، آپ وقت شفیع کی صاحب آواز جی، ڈبل ہنسا ہو رہی ہی ہوا. اس کا چہرہ ہر وقت ہنسا ہی رہتا ہے. صدیق تھوڑا سا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیس شو نہیں ہو رہا ہے میں سچ فیس میں؟ تو شو ہو رہا ہے. آپ بالکل، کو ہو چلیے صدیق صاحب رہا آپ کنٹینیو کریں. جی جی آپ کو میرا تو جی جی تھوڑا سا بات چیت ہم کریں گے. آج اگر آپ نے آنگن واڑی سینٹرز وہ چنا ہے تو آنگن واڑی سے ہی ہم شروع کریں گے. دیکھیں، آنگن واڑی ایک ایسی سکیم تھی جو بچوں کو، جو ہمارے پہلے ہم بچوں کی سے ہی شروع کریں گے، اس کے بعد باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے. جو بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو نیوٹریشن دی السلام جاتی ہے. علیکم۔ نیوٹریشن دی جاتی ہے. نیوٹریشن مینز کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شفیع صاحب میوٹ پہ رہے ہیں، آپ کا فیس بھی شو نہیں ہو رہا ہے. شاید آپ کا فیس بک بھی اپڈیٹ نہیں ہوگا کیونکہ اپڈیٹ آئی ہے. نیوٹریشن جو ہوتی ہے، دیکھیے نیوٹریشن مطلب کہ 2 مہینے کا 6 مہینے کا بچہ ہے، 7 مہینے کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، جو مطلب اس کو کون کون سی خوراک کی ضرورت ہے، اس حساب سے سرکار ان کو وہ خوراکیں دیتی ہے. چاہے وہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چنے کی دال ہوتی ہے اس میں کتنی پروٹینز ہوتی ہے، تبھی جا کے وہ سینٹروں میں آپ کو چھوٹے بچوں کو دیتے ہوئے ملیں گی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی نشو نما جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد بچوں کو جو میٹیریلز پرووائڈ کرتے ہیں وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ بسکٹس ہی دیکھیے، کوئی عام بسکٹ بچوں کو وہاں پہ نہیں دیا جاتا ہے. وہاں پہ یا تو کوئی کمپنی کا سنفسٹ ہو، پارلے جی ہو، نیسلے ہو، ایسی ایسی کمپنیوں کا تیل بھی بچوں کو برانڈڈ، یعنی جو بھی چیز وہاں پہ دی جاتی ہے وہ برانڈڈ دی جاتی ہے، جس سے بچے کی نشو نما ہوتی ہے. لیکن اگر ہم غور کریں، تھوڑا سا محاسبہ کریں، تھوڑی سی فکر کریں، تھوڑا سا اپنے آس پاس کے آنگن واڑی سینٹروں کی طرف نظر دوڑائیں، کیا جو سرکار ہمارے سے، دیکھیے یہاں پہ سرکار کو ہم خطا کار نہیں مانتے ہیں، کیونکہ سرکار جو ہے باضابطہ ایک آنگن واڑی ورکر ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ہیلپرز ہوتی ہے. ورکر کا کام اس کو سکھایا جاتا ہے. جب بھی دیکھو نوٹس نکلتی ہے وہاں پہ اس کی نوٹس پہ باضابطہ +2 لکھا ہوتا ہے کہ وہ 12ویں پاس ہونی چاہیے. وہ 8ویں یا 10ویں پاس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ 12ویں پاس جو ہوتی ہے وہ کم سے کم وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھا سکے، لکھا سکے، ان کو بیسک ایجوکیشن دے سکے، اس کو تیار کر سکے سکول کے لیے. دوسری چیز، آپ مجھے بولیے کہ آنگن واڑی ورکر جو ہوتی ہے وہ فیمیل ہی کیوں ہوتی ہے؟ وہاں پہ کسی مرد کو کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ جو عورت جو ہوتی ہے اس کا بچوں کے ساتھ ایک تو لگن ہوتا ہے، دوسرا اس کو سمجھانے کی ایک ٹرک ہوتی ہے. وہ بچوں کو اچھے ڈھنگ سے سمجھاتی ہے، بچوں کو اچھے ڈھنگ سے پڑھاتی ہے، اس کو A لکھنا سکھائے گی، اس کو B لکھنا سکھائے گی، یعنی جو بیسک ایجوکیشن بچے کی ہوتی ہے، الفابیٹس ABCD Z تک، اس کے بعد کوئی چھوٹی اچھی تعلیمیں وغیرہ. یہ تو ایک فنڈا ہوا. دوسرا فنڈا، وہ جو نیوٹریشن ان کو دیا جاتا ہے وہ بھی یعنی ایک برانڈڈ نیوٹریشن ان کو دیا جاتا ہے، جس سے بچے کی نشو و نما ہو، جس سے بچہ بیمار نہ ہو. لیکن اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے جو ہماری پنچایتوں میں، دیکھیے اس وقت ہر پنچایت میں اس وقت آپ کو 2 2 4 5 6 7 آنگن واڑی میں سینٹرز ملیں گے، جتنے آپ کو وارڈ ملیں گے. کیا آپ مجھے بتائیے، کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا تھا کہ ان آنگن واڑی سینٹروں کی نظر ثانی کریں، وہاں پہ دیکھیں کہ کیا حقیقتاً میں جو سرکار ان کو نیوٹریشن دے رہی ہے، کیا وہی نیوٹریشن
بچوں کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ کیا سرکار جو ایجوکیشن پالیسی بچوں کے لیے تیار کر رہی ہے، کیا وہی ایجوکیشن پالیسی بچوں کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ لیکن ایک اس طرف دیکھیے، سرکار پہ ہم یہاں پہ تانا نہیں کسیں گے، کیونکہ سرکار آنگن واڑی ہر ورکر کو باضابطہ تنخواہ مہینے پہ دیتی ہے، ہیلپر کو باضابطہ وہ کھانا بنانے کا مہینے پہ ادا کرتی ہے، راشنز وغیرہ باضابطہ دیتی ہے۔ لیکن آیا یہاں پر ہم لوگ ہی اپنی ڈیوٹی سے، ہماری جو ڈیوٹی ہے اس سے محروم ہے؟ بالکل صدیق صاحب، جیسے آنگن واڑی کی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جتنے بھی آنگن واڑی سینٹر ہیں وہ تو ہمیشہ کلوز ہیں۔ میں کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں پچھلے 10 10 15 15 سالوں سے وہ کلوز ہیں، وہاں پہ تالا ہی نہیں کھلتا، اور کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آنگن واڑی سینٹر کا کوئی مطلب مکان تیار ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا کچھ کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، ایک چیز ہے کہ آنگن واڑی جو ہے، آنگن واڑی سینٹروں کے لیے بلڈنگ جو ہے، اگر کہیں پہ بلڈنگ نہیں تو اس کو پرائیویٹ کمروں میں رکھا گیا ہے، مطلب وہاں پہ بھی سرکار وہ دیتی ہے، وہاں پہ ان کو وہ کرایہ دیتی ہے۔ رہی ایک چیز، آپ مجھے بتائیے کہ اگر میرے وارڈ میں 10 یا 5 یا 1 سال سے آنگن واڑی سینٹر بند ہے تو اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار ہمارے ڈی سی نہیں ہے، اس کا قصوروار ہمارے ایم ایل اے نہیں ہے، اس کا قصوروار ہمارا پرائم منسٹر یا سی ایم نہیں ہے، اس کے قصوروار ہم ہیں۔ دیکھیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چلو آج سے پہلے پتہ نہیں تھا ہمیں، آج تو ہر گھر میں پڑھا لکھا طبقہ ہے، آج تو ہر گھر میں دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لحاظداریوں میں آپسی بھائی چاروں کو بدستور رکھنے میں کیا کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے، اگر میں نریگا کی بات کرتا ہوں، نریگا تو ایک بہت مطلب وہ تو پیسے والا سسٹم ہے، وہاں پہ آپ نے دن لگانا ملے گا، لیکن جہاں پر آپ کے بچوں کا سودا کیا جاتا ہے تو وہاں پہ تو ہم چپ بیٹھتے ہیں۔ کیا بالکل یہ ہماری ڈیوٹیز نہیں بنتی تھی؟ اگر میرے وارڈ میں پچھلے 2 سالوں سے یا 6 مہینوں سے آنگن واڑی سینٹر بند پڑا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہاں میں اس آواز کو بلند کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں کسی ہائر اتھارٹی کے پاس کیوں نہیں جاتا ہوں بات کرنے کے لیے؟ اگر ہائر اتھارٹی کو چھوڑو، اگر میں فیس بک کے ذریعے ہی اس مسئلے کو اچھالوں گا، 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، 1.5 مہینے کے بعد آپ دیکھیں رزلٹ ہمارے سامنے موجود ہوگا، لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں۔ سبوں نے کمر کس کے رکھی ہے، اگر کرے گا تو ڈی سی ڈوڈا کرے گا، اگر کرے گا تو ایم ایل اے ڈوڈا یا ایم ایل اے جو بھی، جس کا بھی ایم ایل اے، یہاں پہ تو ہم ڈوڈا کی بات ہے، یعنی جو بھی جموں کشمیر کا ایم ایل اے ہے وہ کرے گا، یا کرے گا تو سی ایم کرے گا، یا کرے گا تو پی ایم کرے گا، یا کرے گا تو ایم پی کرے گا۔ دیکھیے، اگر آپ کو ووٹ دینے کی طاقت ہے تو آپ کو حساب لینے کی بھی طاقت ہے۔ بالکل آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 5 سالوں میں ہمارے گاؤں کے ہی پی آر آئی ممبرز ہوا کرتے تھے، ان کی ایک کمیٹی ہوا کرتی تھی جس میں بھی آتا ہوں، جس میں اور ساتھی بھی آتے ہیں۔ ہم کس طرح پھر جب ہمارے علاقوں میں، ہماری پنچایتوں میں آنگن واڑی سینٹر رن نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیوں سائن دیتے تھے؟ ہم ان کو راشن کیوں خرید کے دیتے تھے؟ اس کی غلطی کس کو؟ پھر ہمیں ہی ہے۔ ہم ان کا ساتھ لحاظ بٹانے کے لیے لحاظ رکھتے ہوئے باقی لوگوں کا گلا گھونٹتے تھے۔ دیکھیے، یہاں پہ میں سرکار کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، یہاں پر میں عام انسان کو قصوروار ٹھہراؤں گا۔ بالکل دیکھیے، ہمارے ساتھ اور 2 مہمان جڑے ہیں۔ ارشاد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم صدیق بھائی، اسماعیل بھائی، سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی وعلیکم السلام، السلام الحمدللہ۔ علیکم۔ ارشاد صاحب، کیا کچھ کہیں گے آنگن واڑی سینٹر کو لے کے؟ دیکھیے سر، آنگن واڑی کے سینٹر کے بارے میں آپ کی لگی تھی، صدیق صاحب نے سب کچھ بولا، بہت ہی اچھا بولا انہوں نے۔ جیسے اس سے پہلے ایک جگہ پہ میں نے لائیو دیکھا، وہاں بھی ٹھیک اچھا موضوع چلا تھا، آج نشہ کے بارے میں جی بہت مزہ آیا سننے میں، کہ جیسے کہ ہم روز لگاتے ہیں کہانی، جیسے نریگا کے یا ایم ایل اے کے، آج آپ نے بھی ٹھیک اٹھایا، جیسے صدیق صاحب نے بتایا تو بہت اچھا بتایا۔ میری ایک دوسری سوچ تھی، تو بولی دیں گے آواز لوگوں کو پہنچے گی۔ جیسے ایک ملازم ہوتا ہے کوئی، آنگن واڑی کے سینٹر کے بارے میں صدیق صاحب نے بول دیا تو میں دوسری ایک آواز اٹھاؤں گا۔ جیسے کوئی ایک ملازم ہوتا ہے، اس کی اگر کوئی 1 مہینے کے لیے تنخواہ بند ہوتی ہے تو دوسرے مہینے کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو ان کی تنخواہ نکل جاتی ہے۔
नंबर एक बात ये होती है। दूसरी बात होती है जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो जो भी ऐसे मुलाजिम होता है उनको तनख्वाह बढ़ी जाती है। अब देखो ये मजदूर जो है, मजदूर को तो जैसे नारिका का तो रखो तो 259 है। अगर 259 ही वो देंगे आगे के लिए, नारिका की बात नहीं मैं उठाता हूँ, मैं एक मजदूरों की बात उठाता हूँ। अगर वो 259 ही दे देंगे, महीने को वो कितना बनता है, जैसे वो मेरे ख्याल में बनता होगा यही कोई 12,500। 12,500 तो आप देखो आज इतना महीने का तो बच्चे ही खाते हैं। एक मसला आता है ये। दूसरी बार जब एक मजदूर कहीं दिन लगाता है, जब वो दिन लगाता है जनाब अली, तो जैसे यहाँ के लोग लद्दाख जाते हैं, दिन लगाया उन्होंने तो वहां कोई उनने 20,000 कमाया महीने का। चलो वहां तो दूर जाके 20,000 भी कमाते होंगे, 30 भी। जब 10,000 इनका कोई खाता है, फिर वो किसी के पास भी जाते हैं, जैसे मतलब किसी के पास आवाज, उनका कोई मसला, जैसे लद्दाख से कितने लोग आए आते हैं, बोलते हैं हाँ जी हमने 50,000 कमाए थे, 30,000 या 25,000 ठेकेदार खा गया, तो उधर उन्होंने नहीं दिया, तो आते हैं वापस। कहने का मतलब ये है, अगर आवाम समझेगी कि एक जुलूसा निकालेंगे, हर पंचायत के लोग धरना लगाएंगे 2 दिन डोडा में कि मजदूरों का कोई चारा करो, क्योंकि या तो रेट बढ़ाओ या तो बाकी बाकी मसाइल हैं, जैसे किसी का राशन कार्ड का मसला होता है, 10 दिन एक मजदूर लगाता है डोडा में, तो वहां से वो काम भी नहीं बनती है। कहने का मतलब ये, अगर हर पंचायत के लोग में 10-10 15-15 जाएंगे कि मजदूरों का कोई चारा करो, इस पे अगर कोई अमल होगी तो। कहने का मतलब ये था। प्रतीक भाई क्या बिल्कुल बोलेंगे आगे यही इसके सवाल, बारे क्योंकि अब आंगनबाड़ी सेंटर हमारा टॉपिक, लेकिन आपका भी एक अच्छी बात है, लेकिन यही सवाल पहले सिद्दीक साहब से करूंगा, लेकिन आप अगर लेफ्ट जाएंगे मैं फारूक अहमद डार साहब को ऐड करूंगा। इरशाद साहब, सिद्दीक साहब, ठीक है। इनका कहना है कि अगर हर पंचायत से 10-10 बंदे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि मजदूर का रेट इस टाइम पे बहुत कम मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे सिद्दीक साहब? सिद्दीक साहब, आप तक आवाज आ रही है? म्यूट था। इस्माइल भाई, ये जो अभी इरशाद भाई ने बात कही, देखिए इसके लिए एक हल होता है, इसके लिए एक चीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखिए जी हर एक का काम चलना फिरना नहीं होता है। इसके लिए आप मान के चलो, जैसे यूनियन होती है, अगर यहाँ पे एक लेबर यूनियन तैयार हो, एक मजदूर यूनियन जिसको हम कहते हैं, वो तैयार हो, उसका एक प्रेसिडेंट होगा, उसका एक कैशियर होगा, उसका एक फाइनेंसर होगा, मतलब जिस तरह उसकी एक और वो होती है। देखिए इस तरह से, जिस तरह मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि ये जो हमारा सराज वाला बेल्ट है, हम एक अलग से एक अपनी एक यूनियन बनाएंगे, अपना एक वो बना लेंगे, अ, अपना एक चीज बना लेंगे, मतलब एक यूनियन जैसी। जब आप यूनियन बनाएंगे तो उस यूनियन का जो प्रेसिडेंट होगा, उसका एक बाकायदा इलेक्शन होता है। देखिए ये नहीं कि आज वहां पे एक यूनियन है या नहीं है, या इस वक्त बहुत सारी मजदूर यूनियनें होंगी, वो नहीं। आप यूनियन जितनी है उतनी बना सकते हो, लेकिन उस यूनियन में जो आपकी यूनियन में रहेगा, उसका 10-20 रुपए कुछ फीस होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ताकि वो उस यूनियन का हिस्सा बने। कल उस मजदूर के साथ अगर कहीं पे भी कोई ज्यादती होगी, तो क्या होता है, वो पूरी यूनियन जो है वो काल देगी। मतलब मान के चलो इस वक्त धड़ा के मजदूरों के साथ ज्यादती हुई, अगर हमारे पास यूनियन होती तो हम क्या करते, हम एक जो हमारा पास लेटर था, हमारे पास वो जो अथॉरिटी थी, हम डीसी से बात करते, क्योंकि एक चुना हुआ नुमाइंदा हमारे पास होता। जिस तरह आम आदमी पार्टी एक मजदूर यूनियन है, श्रमिक विकास संगठन, इरशाद साहब को पता होगा, क्योंकि मैं उसका बेसिक मेंबर रहा था यहाँ पे डोडा में। तो उसके अलावा दूसरी एक, जैसे कांग्रेस की भी एक यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक यूनियन है, लेकिन कोई यूनियन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, किसी यूनियन की आपको वो नहीं मिलेगी, वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी किसी यूनियन की आपको। लेकिन अगर लोग चाहेंगे, जैसे इस्माइल भाई, आप धड़ा पंचायत से हो, आप वहां पे 20-25 लोगों को इकट्ठा करोगे, 20-25 जॉब कार्ड या जितने भी जॉब कार्ड होल्डर होंगे, उनको आप बोलोगे यार 10-10 20-20 रुपए आपने रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है। मैं बबोर से हूँ, कोई दूसरी जगह से, कोई तीसरी जगह से है, हमारा एक ऑफिस डोडा में रहेगा, और डोडा में ऑफिस जब होगा, वहां पे जनाब जब भी कोई मजदूर किसी भी मजदूर के साथ कहीं पे भी ज्यादती होगी, तो वो मजदूर यूनियन का जो लीडर होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो डायरेक्ट ऊपर कॉल कर सकता है कि मेरे मजदूर के साथ या मेरे डिस्ट्रिक्ट के मजदूर के साथ यहाँ पे ये हंगामा हुआ, यहाँ पे ये ज्यादती हुई। अगर उस इंसान के साथ वहां पे, मतलब मान के चलो हमने इरशाद साहब को प्रेसिडेंट बना लेते हैं, इरशाद साहब की डीसी साहब नहीं सुनता है, या जो भी लेबर का होगा वो
نہیں سن رہا ہے تو ارشاد صاحب ایک کال دے سکتے ہیں اور ہر پنچایت کے بعد کسی 10-10 20-20 مزدور آ سکتے ہیں اور وہ ڈوڈا میں یا کہیں جموں میں کہیں پہ بھی احتجاج کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ باضابطہ قانون ہوگا، ان کا ایک باعلاج ہوگا۔ دیکھیں اسی کے لیے لاہ عمل ہوتا ہے۔ اس وقت ابھی ارشاد صاحب کی کچھ ایک بات تھی، مطلب ارشاد صاحب نے یہ بات بالکل اچھی کہی، کیونکہ مزدور وہ یونین جو ہوگی وہ ریٹس پہ بات کرے گی کہ اس وقت مزدور طبقے کا ریٹ یہ ہے اور ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا ریٹ اتنے سے اوپر بڑھایا جائے۔ یونین کا کام یہی ہوتا ہے۔ کہیں مان کے چلو کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، دیکھیے انسان کے ساتھ تو حادثہ پیش آنا ہے، کہیں کچھ ہوا کسی کا مکان، تو یونین کیا کرتی کی ہے، اپنے جو اس کا ذاتی خرچہ ہو، جو لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ملا کے وہ وہاں پہ اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے لیے یونین کی ضرورت ہے، یونین مینز اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اگر ارشاد صاحب نے یہ اٹھایا تو ہم اس کے ساتھ ارشاد صاحب بولے کیا کب میٹنگ کرنی، بلائیے آپ ہر پنچایت سے دو ایک ہی جوان بلائیے، یا بولیے کہ کس پنچایت سے شروع کرنا ہے اسی پنچایت سے ہم شروع کریں گے کام۔ یہ نہیں، دیکھیے یہاں پہ پارٹی کو بھالائی طاق رکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کا آپ نے کام کرنا ہے تو اس وقت پارٹی کو بھی کہیں پہ آپ کو خیر آباد کرنا پڑے گا۔ کہیں پہ دیکھیے میں تو ان چیزوں سے بالکل بہت زیادہ دور ہوں۔ میں پارٹی شارٹی کو سائیڈ میں رکھ کے پہلے انسانیت کے ناطے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، لوگوں کے کام کرتا ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ چلے نئے مہمان ہمارے ساتھ وانی ثاقب بھائی جڑے ہیں۔ ثاقب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رات کو ہماری بات ادھوری رہی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ جڑیں گے لائیو دوبارہ۔ جی 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 جی۔ صدیق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تارک وارہ بس فرسٹ کلاس تہذ کت سارے کت آئی پسند، مے انشاءاللہ سارے کت پسند، مگر اخ چیز بہن وی مز گستاخی معاف، بہت دپان لیور یونین تھی ونان یہ بڑا بہترین کت، یہ کی غلط کت، مگر ام خاطر ون کہ اگر اخ ایم ایل اے چنن پتہ گژھِ اخ ایم ایل اے اخ غریب سٕنٛز کٲم کرُن، گژھِ نہ گژھِ کرُن نہ سچی اگر وۄنۍ ییٚتٮ۪ن ات پہ تر ارشاد صاحب نظر سنی اد ون بہ کیا آسان۔ یہ تہد ٹاپک صحیح بیٚیہِ گٔیے رات دوران یتھ أکِس کتھ پٮ۪ٹھ موضوع گیا أکِس کہ دینٕچ کتھ ٲس مٔنٛزۍ اگر زن فاروق صٲبن ونے مٔنٛزۍ دینٕچ کتھ، جی جی جی۔ پتہٕ ہیوٚکُس نہٕ بہٕ رات مٔنٛزۍ یتھ، اگر مثال کہ یُس بہٕ عام کتھ جنرل بہٕ عام کتھ کرٕ کہ اگر مٔنٛزۍ کِنۍ اگر اسہِ موٚضوٗرۍ چھِ کرٕنۍ موٚضوٗرۍ منٛز تہِ گژھِ اسہِ آسٕنۍ خۄداے یاد، چاہے بتہٕ آسہِ کھیوٚن تمہِ تہِ گژھِ بسم اللہ آسُن یاد، اد اگر اجسٕچ کٲم آسہِ چاہے کینٛہہ تہِ کٲم آسہِ تتھ منٛز تہِ گژھِ آسُن خۄداے یاد، اگر خۄداے آسہِ یاد کہ أسۍ ہٮ۪کو سۄ حقٕچ کٲم انجام دِتھ، اگر تتھ منٛز اسہِ قرآنٕے آسہِ نہٕ یاد أسۍ دپو نہ وۄنۍ چھِ اسہِ اجسٕچ کتھ تُلٕنۍ اتہِ چھُنہٕ قرآن تُلُن مٔنٛزۍ تہٕ وہ غلط بات اسہِ گژھِ تتہِ تہِ قرآن آسُن مٔنٛزۍ، اگر أسۍ اجسٕچ موٚضوٗری کرو موٚضوٗرۍ منٛز تہِ گژھِ اسہِ قرآن آسُن مٔنٛزۍ، اگر اسہِ مٔنٛزۍ آسہِ نہٕ قرآن کیٛاہ پتہ أسۍ ہٮ۪کو آرام تہِ کھٮ۪تھ۔ بوٗزِو جناب تُہۍ ووٚنوٕ مثال کٔرِتھ ایم ایل اے او خٲطرٕ ارشاد صاحب تہ کر بہ اخ کت ات گژھِ مےٚ مٔشِتھ۔ ؤنِو۔ جی طارق صٲبن ووٚن مسا اکھ چیٖز، اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ شُکر تہٕ احسان کہ أسۍ چھِ مُسلمان، نسا اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک۔ اسہِ چھُ یقین یہ کہ اللہ تعالیٰ مطلب رات تہِ ووٚن فاروق صٲبن کہ ہم جو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے وہ رحمان الرحیم بھی اور غفور واحد القہار بھی ہے، مگر ایک چیز بھی کا بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھا کہا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو آپ کے لیے میں نے ایک ماڈل تیار کیا ہوا ہے، اور وہ ماڈل جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مطلب قرآن میں سن۔ بے شک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تک سکھایا کہ آپ نے باتھ روم کیسے جانا ہے، وہاں سے نکلنا کیسے ہے، مطلب اگر آپ نے جوتا لگانا ہے تو جوتے کے تسمے آپ نے کیسے باندھنے ہیں۔ تو دیکھیے میں نے ایک ہی رات کو ایک اشعار پڑھا تھا علامہ اقبال کا، علامہ اقبال بہت پسند آیا، کوئی چھوٹا انسان نہیں تھا، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، ایک مسلمان جو ہے وہ بہادر بھی ہونا چاہیے، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا اور سچائی کا، مطلب وہ تو سچا بھی ہونا چاہے
लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इमामत खाली नमाज पढ़ना नहीं हो, थोड़ी सी नमाज। इस्लाम ये नहीं है कि आप कोने में बैठ के सुबह अल्लाह पढ़ते रहो। यार आपका चलना, आपका फिरना, बैठ आपका काम ना करना, जो अभी तारिक भाई ने बोला, आप नरेगा में काम करते हो, उसमें भी आपको इस्लाम नजर आना चाहिए, उसमें भी आपको खुद से खुदा होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही इमामत इमामत की होती है, रहबरी होती है, रहनुमाई होती है। तो रात सिद्दीक साहब मस्जिद आपकी में आवाज एहतजाज कट भी रही है, काफी। आपका नेटवर्क वीक है। सिद्दीक साहब आवाज कट रही है। रात गए कत जोड़ा कम ना रूजित मे सो बोजनावा बह सदीक साहबस तोर साहबस मे वाकफ अक्सी जाए रोजान मगर अ वाकफियत पान जी जी जी, वनी वनी। वेल डब्ल्यू इस गई मे डी सी दिस दरखास्त तथ खुद जाए एफिडेविट आ 3 नफरो ये जी दपन लोग कि बे हम इन एक्शन कि यमो यम चूर कर बुलाकन मज हम बह एक्शन न्यू गुटाल न्यू गुटाल पूर पंचायत गुटाल नश तम कागज ऑनलाइन हको कुन गड़ इशू कर मे दिता तम खुद न्यूज टीएल दिता न्यूज बुलाकस नबर कर तथ जी गो तथ पे कह डी सी प्रून तम हेत एक्शन वेक्शन कह मोहम्मद शफी हमीद साहब वगैरह 3 जन अस क्या गो अत खातस मज जहा पिम नीम चोरन हंदिस खातस मे पता अत चोर क्या कर अत लेनी देनी ना अत मतलब यमो चोर खात इन चोर खातन मज पेवनी न गए लागन खुदा और मसल गो यूथ कि मे दुक डंग गर दपन तुम दियो सा देवार व्यवहार दियो तुम ठिक्यू देवार दियो जो डंग तुम ओमुत तुम दियो देवार अस क्या दिस देवार इस गए देवार व्यवहार दियो सोरी कंप्लीट कोर दपन यह खोतमुत डंगे तुहद काम पत् तवच ऑनलाइन पेमेंट ना इथे पे शफी साहब वगैरह सानी टांडा पंचायत यह दपान तुहद डंग ओमुत क्या शुनमुत अत पोश कड़म बिल कड़म बहुत तुलान इशू इथे पे आय कड़ ऑनलाइन अव कागज मे कर सारी ऑनलाइन कागज द्राय अव नीरान 14 हथ पूर गामस यमो पेमेंट कर्म सह क्या लुकन त्रमित ना कम जमीनी सतह तिम लुकन वन मे तुम कम कर्म दपान ना कर्म यह पॉइंट वोन डी सी गोक डी सी यह नो आज प्रून डी सी तमिस वन मे जनाब ये पे इनलीगल तरीकस पे पोस आमित कड़न क्या आमित कड़न वेल डब्ल्यू राजा फिरदौस बदरूह जी तो आ तमिस खोत अत कत पे इस गड़ त्रो कंप्लेंट दिस पूरा ग्रेवयार्ड रोड टू दलरमन वत वगैरह इन कागज मनी डॉक्यूमेंट सारी कड़ित वेंडरन हंद कि वेंडरन कमिस कमिस पोस त्रावन क्या कड़न पत कड़ खाना पोस कड़ तेल बात बे मगर तिम अस लोग डी सी वन कि बह कर या थो तुई अंदर तो नत हसा निम बह नौकरी कि अगर तुम पोज वन दपान तुम दियो अम खतर एफिडेविट लिखित गई अस नबर एफिडेविट अस दिस एफिडेविट डी सी इस गई एफिडेविट डी सी दित तथ पे गई कार्रवाई तथ पे गई बिल्कुल कहें कार्रवाई बिल्कुल ही ब्या तम वेल डब्ल्यू वगैरह लग फोन वोन कर होड़ योड़ हे यह हसा करू वह करू लग ब्लॉक दफ्तरस अंदर पेंची वेंची गसन यो शफी साहब ब्रोट त्रोमुत टाना पंचायत शफी साहब यह अद लग वन दपान वह दिन मे ए वह कर एक्शन तह जरूरत तुम वन चोर कर्म क्या शो यह पोस कोड़मुत क्या यूत वारा पोस क्या नाजायज पोस कि कम पोस सह वारा सह 40 लक्षन यून घोटाल मगर अस नश 7-8 लक्षन यून टोटल पत क्या गो तथ मुदास पे तो अत गो अमिस क्या गो राजा फिरदौस बदरूह यह नंबर चोर अमिस गो शरारत अम आए वाई तब गाम कन लुकन टित यमो यमो अमिस खिलाफ कंप्लेंट कर जी तिमन जी, टुक आए वाई टित आए वाई चटन सम टित हालांकि एज ए वो मुसलमान तम हकस पे पकुन बिल्कुल तम चोरन पत बिन सह कम सज वो तम लुकन गलती तक तमिस वेल डब्ल्यू गलती एज ए मुसलमान तमिस गई तम कर कागजी पेंसिल तमिस अथस क्या तिस गई तमिस खुदा तो खुदा सुन रसूल नजर यून कि सह कर बेईमानी क्या तमिस ₹1,00,000 तनख्वाह और बज खानदन नफर कि पोसो वोल यह कि तमिस हराम खेन और तम सी खतर वन लूक दपान कि वारा ईमानदार वारा जबरदस्त फुलहल सिंह ACD कि यमिस नश तमाम 3 रेतन पकमित कंटिन्यू कि कर सा वुच वेरिफिकेशन तथ ये गई MLA सही आज के दौर में हमारे पास MLA है कि यमिस कि गुड हको वन कि गुड अम खुतर वो लुको यह सरकार अमिस साथ दितमुत यह मगर अत मज क्या रात क्या वो कि अमिस दी सुई साथ कि यमिस मज क्या ईमानदारी आसि तो अत गो अमिस बाकियों वनकन बाकियों जायों पे सपोर्ट मिलान कैंचन जायन पकान तम लोग तोड़ वन कि दपान महराज जैसा लीडर मिलेगा ही नहीं और हकीकत मज वनकन हर कह पॉलिटिक्स कर कि अम चोर यी ना रटने खबर क्या करो मगर यह चोरी करेगा ही नहीं योता जी भरोसा की यह खबर जरा रात तारिक साहब, ये हाँ हाँ
یہ خبر کیا ونو مے بوز نا آز نا کہ کہاں لیڈر ژور مگر یم لیڈرن ست یم چمچہ یم چھ لیڈرس تباہ تو برباد کران. نہ مگر اخ چیز وچھو یہ حقیقت تہذ کت پوز یم چمچہ آسان مگر لیڈرس گھس پان تگی لیڈری کریں. اور چمچن اگر ہند لیڈر حال دیندار دیندار یہ ونکن معراج صاحب ملک دیندار ہو کے بھی کہ سہ اتکی نظر تھا ہر چاہے مسلمان چاہے سکھ طارق چاہے صاحب عیسائی کمنٹ ہر کمنٹ کوئی آیا ہے. نظر تھا. طارق صاحب کمنٹ آیا ہے آپ کے لیے. آپ بولو طارق صاحب لاسٹ پوائنٹ تم کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہر جو بھی لوگ ہیں چاہے ملازم جو بھی طبقہ ہے اگر وہ مسلمان ہے وہ قرآن کو مد نظر کر کے ایمانداری سے کام کرے. ہمارا موضوع ہے کہ یہی کہ بس مسلمان جو ہے وہ اپنی حق پہ چلے اور خاص کر کے جو بھی ملازم مسلمان ہوگا جی وہ سون مین ایمانداری سے مقصد چلتے ہیں. ایمانداری سے اگر ملازم ایمانداری سے پکہ اور عوام ٲسۍتن ژوٗر تِم چھِنہٕ وۄنۍ کینٛہہ دپان کہ لُکھ چھِ غلط. اگر لوگ غلط ایک ملازم کے پاس تٔمِس چھُ خۄدا صٲبن دیُتمُت اختیار کہ تٔمِس چھُنہٕ پننہِ دَرِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ سُہ ملازم بٔنِتھ کینٛہہ تٔمِس چھُ خۄدا صٲبن سُہ روزی عطا کٔرمٕژ تہٕ روزی گژھِ ہا تٔمِس پگٕنۍ حقس پٮ۪ٹھ لاگٕنۍ. میون چھُ مونُن کہ یوٗتاہ نہٕ مُسلمان چھِ چاہے سُہ کانٛہہ سا ٲسِنۍ چاہے پتہٕ کہ ہیوٚن چھُ ہیوٚن تہِ گژھِ ہا کرُن ایماندٲری سۭتۍ کٲم مُسلمان تہِ. وٕنکٮ۪ن چھُ مےٚ لگان کہ اکثر چھُ ہیوٚنٛد کران ایماندٲری کٲم اور مُسلمان چھُنہٕ کران. بالکل. یہ چھُ چلیے شفیع حقیقت. صاحب آپ بول رہے ہیں کہ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو میں نے ابھی تک 10 بار کوشش کی لیکن آپ ایڈ ہو جاتے ہو. نہ آپ کا فیس شو ہوتا ہے نہ کچھ. آپ کا شاید فیس بک اپڈیٹ نہیں ہے. آپ اپنا فیس بک اپڈیٹ پہلے کریں یا تو نیٹ ورک ویک ہوگا. صدیق صاحب اگر اتنی بڑی داندلی پنچایت ٹانٹنا میں ہو رہی ہے 40 لاکھ کا گھوٹالا کام ایک بندہ کر رہا ہے پیمنٹ پورے گاؤں کو مل رہی ہے کیا کچھ کہیں گے اس پہ؟ اصل میں تو وارڈ میں نمبر 1 پہ کیا طارق الیکشن سے پہلے کیونکہ اس میں کوئی ایم ایل اے نہیں تھا اس دوران. اس دوران ایم ایل اے آواز تھا ہی نہیں. آواز ایک سوال یہ بھی ایک سوال صدیق صاحب یہ بھی بنتا ہے پہلے سوال پورا سنیں. آج اگر ایم ایل اے ہے آج لوگ ایم ایل اے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ ایم ایل اے تھا ہی نہیں. پھر اس ٹائم پہ غلط کیوں ہو رہا تھا؟ نہیں آپ مجھے میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. دیکھیے سب سے پہلے میں آج پھر لے دے کے ہم پھر نریگا کے اوپر ہی پہنچ گئے ہیں. نہ مگر آج ہمارا مدعا جو تھا وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اوپر بات کرنا تھا. دیکھیے نریگا ہی خالی ایک ڈپارٹمنٹ. چلو طارق صاحب نے بولا طارق اب یہ صاحب نے کل سوال کیا اور ٹاپک تو ہمارا کچھ اور تھا. ان نے بتایا ان نے کل ادھورا چھوڑا تھا اس لیے ان نے آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. اس کا جواب دینے کے لیے فاروق صاحب آ گئے. فاروق صاحب السلام علیکم. چلیے فاروق وعلیکم صاحب سے السلام. سوال کا جواب مانگتے ہیں. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس لائیو کو جوائن کرنے کے لیے. طارق صاحب کا سوال ہے کہ اگر کام ایک بندہ کرتا ہے یعنی کہ کام میں نے کیا تھا لیکن پیمنٹ پورے گاؤں کو ملتی ہے اور وہ الیکشن سے پہلے اس ٹائم پہ ایم ایل اے نہیں تھے یعنی کہ الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی ہو رہی تھی. اگر آج ایم ایل اے کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں پھر الیکشن سے پہلے کام کمپلیٹ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس پہ دھاندلی کیوں ہوتی تھی؟ جی آپ تمام پینلسٹ کا اور شفیع صاحب کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک سوال کیا. آج صبح سے مجھے 2 ایسے فون آئے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. تو یعنی اگر آج کی ڈیٹ میں برا نہیں مانیے گا ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے سوشل ورکر ہیں. ہم فائٹ کرتے ہیں ہم جد و جہد کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے پورے ملک کے اندر جو فیمس ایگزام ہے یو پی ایس سی آئی اے ایس اور سٹیٹ کے اندر کے ایس کوالیفائی کر کے جو نوجوان آئے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے قریباً کوئی 30 سال میں کوئی 28 سال میں کوئی 32 سال میں جو ہے وہ کوالیفائی کر کے آتا ہے ایک آفیسر بن کے آتا ہے. آپ خود ہی ذرا سوچئے اس کو ایک بلاک دیا جاتا ہے اور بلاک کے اندر قریباً 10-12 پنچایتیں ہوتی ہے. ایک اے سی ڈی کو پورا ڈسٹرکٹ دیا جاتا ہے جس کے اندر 17-18 بلاک ہیں. اس کے ساتھ جنگ لڑنا اس کے ساتھ فائٹ کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں لیکن ایک جاب کارڈ ہولڈر کے سوالوں کا جواب دینا میرے لیے بہت بڑا ٹاف جاب ہے. اتنا انٹیلیجنٹ اتنا
काबिल, उतना बासलाहियत एक मैं नहीं मानता हूं एक केएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर होता, जितना एक सीधा सादा इंसान जिसको जॉब कार्ड होता है, वो बहुत बहुत पहुंची हुई चीज होती है। अब देखिए, देखो मैं ऑनलाइन इस वक्त लाइव शो पे बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और हो सकता है वो मेरे बारे में गलत जो है सोच भी डेवलप करेंगे कि ये न जाने क्यों ऐसा कह रहा है। वो दो शख्स मुझे सुबह से फोन कर रहे हैं कि आप आगे लड़ो, और झगड़ा किस किस का है? कजिन ब्रदर्स का है, कजिन ब्रदर्स हैं। एक कहता है दूसरे को मेरे काम पे अटेंडेंस नहीं लगानी है, दूसरा कहता है जब मेरी डिमांड ही वही है मैंने कहां लगानी है। मतलब अब ये मसला जो है मुझ तक पहुंचा तो मैंने कहा नहीं यार, ये मसला मुझसे हल नहीं हो सकता, ये सीधा एमएलए साहब ही हल करेंगे। कि कॉम्पिटिटिव अगर कोई है वो एमएलए साहब ही हैं, इस मसले को हल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अभी भी जवाब आपके सवाल का नहीं मिला है। कहने का मुद्दा और मतलब ये है कि काम मैं करूं और पैसे और कोई ले, काम मैं करूं और पैसे और कोई ले, उसके अंदर जो जो मलौवस है, क्या इस शख्स के पास रस्सी नहीं है? उनको बांध के वहीं देवदार के साथ या स्कूल के उस क्या कहते हैं पिलर के साथ नहीं रख सकता है। मतलब ये इतना चालाक इंसान है, ये चाहता है कि शो पे तो मैं कह जाऊं, लेकिन जंग सदीक, फारूक, जुल्फकार और इस्माइल लड़ेंगे, मैं अपने आप को आगे पेश कभी नहीं करूंगा। और मैं ये बबांगे दौल फिर से कहना चाहूंगा, बबांगे अब रात है, शब को ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन गांव वाले तमाम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जिस दिन मेंबर का इलेक्शन होना होता है उस दिन भी ये 2-3 टुकड़ों में होते, सरपंच का इलेक्शन होता है उस दिन भी ये 4 टुकड़ों में होते हैं। उस दिन उस नेता को सामने नहीं लाया जाता है, उस वार्ड मेंबर को नहीं लाया जाता है या सरपंच को, जो सब लोगों के लिए जो है काम करे, जो वाकईतन बेबाक हो, निडर हो और उसूल पसंद हो। कहते नहीं, आज की डेट में ईमानदार और उसूल पसंद को कभी भी वोट नहीं देना। क्यों? अगर उसने वाकईतन वहां इंसाफ किया तो जरूर हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम उस शख्स को वोट देंगे जो हमारी तरह हमारी मर्जी से चलेगा। यानी कि उस वक्त हम रिश्तेदारी के लिहाज में चले जाते हैं, खानदान के लिहाज में चले जाते हैं, जात पात के लिहाज में चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिहाज में चले जाते हैं। अब जब हमारे मकान का पलंथ ही गलत होता है तो ऊपर जो है जो इमारत बननी है, जो बिल्डिंग बननी है, वो कहां मजबूत हो सकती है। और जो वो शख्स अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए फाइट नहीं कर सकता है, वो दूसरों के लिए वो क्या कर सकता है? उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इसलिए आज चाहते हैं कि एक जॉब कार्ड होल्डर इस वक्त जो कहता है मेरे साथ जुल्म हो गया है, यार जरा पहले खुद तो बाहर निकल, हम देखेंगे कि आप अपने लिए इंसाफ तलाश करने के लिए कहीं मार्केट में तो उतरे थे। आपने एक दिन तोड़ा, आप कहीं ऑफिस के सामने आए, अगर आप ऑफिस के सामने आओगे फिर सदीप को बुलाओगे, वो भी आएगा, इस्माइल भी आएगा, फारूक भी आएगा, जुल्फकार भी आएगा, लेकिन आप खुद घर में बैठोगे और हम 4 को वहां भेजोगे, और जिस वक्त जिसके साथ जुल्म हुआ होगा बताएंगे लाओ भाई उसको भी सामने, उससे बात करेंगे, जनाब वो हजरत वहां पे नहीं होगा। तो अगर इनकलाब लाना है, अगर इंसाफ को कायम करना है, तो हम लोगों ने, मुद्दी ने भी और गवाह ने भी, मुद्दईया ने भी, तीनों ने जो है कम से कम जज साहब के सामने हाजिर होना। वो जज कौन है? चाहे वो एक बीडीओ साहब हूं, चाहे वो एक सेक्रेटरी हूं, चाहे वो जीआरएससी क्यों ना हो, आखिर फाइल जो बनी, काम किया मोहम्मद शफी साहब ने, पैसे लिए गुलाम रसूल और गुलाम मोहम्मद ने भी उस काम में से, खता किसकी है? उसकी शुरुआत कहां से हुई है? गुलाम मोहम्मद और गुलाम रसूल की अटेंडेंस किसने लगाई? उसकी डिमांड अपलोड जो है किसने की? लेकिन उनके साथ नहीं बिगाड़नी है, उनको कभी जो है उनके मुंह पे सच कहना नहीं है,
बस यूं ही सबको जो है गोल चक्कर में चलाते चलो यार। जहां पूरी जनता को गोल चक्कर में डाल रहे हो, वहां अकेले मैदान में निकलो ना। जब आप पे कोई हाथ उठाएगा या आपके साथ कोई ज्यादती करेगा, उस वक्त हम लोग भी आपकी सपोर्ट में मैदान में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं फिर यहां से ऐलान करता, हाँ अगर इस वक्त कुछ हो रहा है, मौजूदा टाइम में कुछ हो रहा है, इस वक्त आपकी डिमांड्स जो है नहीं लग रही हैं, या इस वक्त जो है चीटिंग हो रही है, धोखाबाजी हो रही है, हम इस वक्त इमीडिएट, क्योंकि अभी वो कंट्रोलेबल बीमारी है, उस डिजीज का, उस बीमारी का अभी इलाज किया जा सकता है, फौरी तौर किया जा सकता है। लेकिन अब जो है पिछली बीमारी है, 3-4 साल से है या 2 साल से या 3 साल से है, तब कोई और जीआरएस था, कोई और सेक्रेटरी था, कोई और बीडीओ था, कोई और एलजी था या कोई और था। तो आज महराज के नाम ये सब कुछ चढ़ा के, या महराज के जो फैंस हैं या उसके जो सिपाही हैं, उनको आज काम पे लगाना, खता किसी ने की होगी, जुर्म और गलती किसी की होगी, और आज हम उसके सुधार के लिए निकलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को सामने फिजिकली आ जाना चाहिए। आप लोग अपनी दरख्वास्त लेकर, अपना मामला लेकर बीडीओ साहब के पास आए, हम भी वहां खड़े होंगे। फिर एमएलए साहब जो है आपकी फाइल लेकर सब लोगों को जो उसमें मुलव्वस होंगे बुलाएंगे, सामने तहकीकात होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब एक लास्ट में जल्दी कहना चाहूंगा, कल मुझे एबीसी फोन कर रहा है, जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, जनाब मैं फला हूं, नाम एबीसी, गालबन ये धड़ा पंचायत की बात है। कह रहा जनाब वो जो है ना वहां पे जो काम फला काम है। मैंने कहा है। कहते जनाब वो मेरी अटेंडेंस ही वहां नहीं लगा रहे। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है, आपकी क्यों नहीं लगा रहे? मैंने कहा आप कहाँ हो? कहते मैं डोडा में हूं। वो मैंने कहा आप डोडा में हो तो धड़ा में कहां से अटेंडेंस आपको लगेगी? कह रहे जनाब बात इस तरह है कि मेरे अलावा 2 की 3 लोग हैं वो लद्दाख में हैं और उनकी अटेंडेंस लग रही है। मैंने कहा यार बहुत ही खतरनाक कोई ऐसी ऐप है जो लद्दाख में उनको ट्रेस करके हाजिरी यहां लगाती है। फिर मैंने कहा यार फिर तो आप तो कामयाब हो। कहते कैसे? मैंने कहा यार वो निकाल, वो क्या कहते हैं उसको, वो एक शीट निकाल, प्रिंट निकाल, जिसमें उन लोगों के नाम होंगे, उनका जॉब कार्ड होगा, उनको 5-7 दिन की पेमेंट गई होगी। वो शीट निकाल ना, ले आ इधर, बीडीओ को दे, एसीडी को दे, अगर उनसे तसल्ली नहीं है पुलिस को दे, उनकी एब्सेंसी मिसिंग रिपोर्ट डाल कि ये कल सुबह यहां थे, पिछले हफ्ते यहां थे, आज गायब है, पता नहीं वो कहां है। मैंने कहा उस वक्त जीआरएस को भी पता चलेगा, उस मेट को भी जो अटेंडेंस उनकी चढ़ा रहा है कि नहीं चलेगा, सेक्रेटरी को। हम तो चाहते ही हैं कि हम चोरी पकड़ें, और चोरी पकड़ने के बाद जो है कटेरे में इनको सबको यानी खड़ा करेंगे कि आओ आप जवाब दे दो। कहता अच्छा मैं जरा भाई साहब को पूछूंगा। जब मैंने कहा एप्लीकेशन दे दो, इधर पर्चा उनके, जरा प्रुसबु बाइस जरा प्रुसु याव पेट कोर तम शख्सन वापस फोन ना प्रुसुन बाइस ना के। इसका मतलब वो ये झूठ कह के जो है खुद एंट्री चाहता था, खुद दाखिल होना चाहता था कि मेरी जगह किसी और का सर वहां पे जो है उस ऐप के अंदर लाया जाए, मेरी अटेंडेंस चलती रहे और मैं यहाँ पे कारोबार डोडा में भी करता रहूं। मेरे भाई जो हम खुद अगर हम बेईमान हैं तो हम दूसरे पे उंगली हमें नहीं उठानी चाहिए। हमें पहले खुद ईमानदार बनना चाहिए, फिर दूसरों को भी ईमानदारी के लिए दावत देनी है। ईमानदार बन के भी हमने दूसरों का कत्ल नहीं करना है, उनका नुकसान नहीं करना, उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी है, लेकिन अपने आप को तो बेहतर बनाएं। लेकिन हम बेईमानी की आड़ में, उस आड़ में खुद भी घुसना चाहते हैं, गलत के साथ हम खुद जाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इन शफी साहब को यही कहना चाहूंगा, आपके साथ जो ज्यादती हुई है हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन उस दौर जिन लोगों की जिम्मेदारी है, अगर उसमें उन्होंने कुछ गलती की है, देखिए अदालतें पड़ी हैं, पुलिस पड़ी है, हमारे पास एजेंसीज पड़ी हैं। आप एक एप्लीकेशन बनाइएगा, पूरे डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाइएगा, जो उनको प्रूफ चाहिए, कुछ सबूत चाहिए जिनसे आप केस और जंग जीत जाएंगे, वो उसके साथ अटैच कीजिएगा। हमारी कहीं जरूरत आपको पड़ेगी, हम आपके साथ शाना बशाना है, लेकिन एक चीज है कि सामने आपको रहना होगा, आपके पीछे खड़े हम रहेंगे। वरना आप ये चाहेंगे कि हम खामखा कहीं जाएंगे जंग लड़ने के लिए, और जब तहकीकात वहां होगी, वहां कुछ
जो है वो रिजल्ट ही कुछ और होगा, तो ऐसी बात नहीं, आप सामने आ जाइए, हम आपके साथ हैं और हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। वाकईतन अगर आपके साथ जुल्म हुआ होगा और उस जुल्म में जितने भी लोग पाए जाएंगे उनको हम चाहेंगे, फिर कोई दे उनको सजा ना दे ये दूसरी बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम सरकार से और अदालतों से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहेंगे कि कम से कम खुदारा आप इन घोटालों से अपने ऑफिशियल्स को, अपने एम्प्लॉयज को बताओ कि बाज आ जाओ। यानी एक शख्स मुझे कहता है कि आज जॉब कार्ड होल्डरों से भी अटेंडेंस लगाने पे जो है ये जो है डिमांड की जाती है कि आप कुछ दीजिएगा, हम तुम्हारा भला करेंगे। इससे पहले कम से कम ये तो था कि जॉब कार्ड होल्डर को कोई नहीं मांगता था, सिर्फ मटेरियल और स्किल्ड पेमेंट के चक्कर में जो है सब लोग कमाई करने के फिराक में हुआ करते थे। तो इसलिए मैं यही इन शॉर्ट कंक्लूड करना चाहूंगा कि अभी हमने बड़े बड़े केसेस जो है वो सुनने हैं, लेकिन उनका हल तलाश करने जब हम निकलेंगे तो फाइनल पे मैं ये एक बात फिर याद आई मुझे, धड़ा का एक खास शख्स मुझे आज फोन करता है, इस्माइल, कहता जनाब ये लोग जितने भी डोडा आए थे इन लोगों के काम अच्छे नहीं हैं। मैं उनके कामों पे गया था, मैंने फीते डाले थे, मैंने खुद देखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीडीओ और जेई साहब ऊपर आ जाएं, उनको जितना पैसा आया है वो भी कहीं वापस ना ले जाएं। मैंने कहा मैं साथ में हूं, अगर उनने जमीनी सतह पे कुछ नहीं किया है मैं बीडीओ जेई के साथ जाऊंगा, ऑन स्पॉट जो है इंक्वायरी होगी, वहां पे जो गलत पाया जाएगा उसको सजा दे देंगे। मतलब फिर उसको लास्ट में मैंने ये कहा, ये मुझे बता कि जहां खुद जेई ने कहा था अब बस ये बंद काम है, अब इस काम पे और एक्स्ट्रा जो है वो प्रोग्रेस नहीं चाहिए हमें क्योंकि ये बहुत एक्सेस ऑलरेडी जा रहा है। मैंने कहा वहां, कहते उनको क्या हुआ, मैं उनको भी 100 रुपये और 75 रुपये रेट डाला है। जनाब बंदे ने सीधा फोन काट दिया। मतलब ये हाल है कि इस किस्म के एजेंट भी आपके सोसाइटी के अंदर हैं जो आधे अभी भी उनके साथ जो हैं सट्टा बट्टा किए हुए हैं और आज भी गरीब जनता के कातिल हैं वो, मतलब तारीखी में छुप के जो है वो वार कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि जो ये काली भेड़ें हमारी और आपकी सोसाइटी में अभी हैं, जो उन पुराने जो है उन जो करप्ट लोग थे उनके नेटवर्क में वो तब भी थे और वो आज भी हैं और कानूनन वो उस नेटवर्क में घुस रहे हैं, कोई ये बन के कोई वो बन के। तो मैं तो ये चाहूंगा कि इन पर भी खास नजर रखिएगा। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, नियाज साहब भी आए हैं, तो अस्सलाम वालेकुम, और इनको भी जरा मजीद टाइम दीजिएगा ये और रोशनी नियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम फारूक साहब और दूसरे साथी मेरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त दिया। नियाज साहब हमारा टॉपिक आई था आंगनवाड़ी सेंटर, लेकिन अब बीच में एक भैया आया कि कल अधूरी बात रही थी, उसने अपनी बात कंप्लीट की, इसलिए फारूक साहब से वो सवाल रहा था। नियाज साहब आप आंगनवाड़ी सेंटर के हवाले से थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि आंगनवाड़ी सेंटर का जो मेन काम होता है क्या होता है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए, क्योंकि लोगों को इस बारे में ज्यादा मालूमात है ही नहीं। आपने मुझसे वो सवाल पूछा जिसकी गाज मुझ पे खुद पे ही गिरेगी पहले, क्योंकि मेरे घर में आंगनवाड़ी सेंटर है, मेरी मिसेज आंगनवाड़ी सेंटर में है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आंगनवाड़ी सेंटर्स का जो रोल होता है, एक मोहल्ले में एक आंगनवाड़ी सेंटर दिया जाता है, वहां के जो बच्चे और उसमें 1.5 साल से लेके 3 साल तक का बच्चा, 3 साल से 6 साल तक का बच्चा, और उसमें प्रेग्नेंट वुमेन, और उसमें एडोलेसेंट गर्ल, और उसमें कुछ जो विडो होती हैं या ऑर्फन होते हैं, उनको जोड़ के एक एनरोल किया जाता है, एक एनरोल तैयार किया जाता है जिसके हिसाब से उन लोगों को राशन दिया जाता है। तो आज का जो दौर ऐसा दौर गुजरा है कि अगर आज कितना भी राशन लोगों के बीच में बांटेंगे, क्योंकि हम लोगों में हराम खाने की आदतें जो हैं वो ज्यादा हुई है। मैं अपनी बात करूंगा, अगर मेरे घर के अलावा दूसरे घर में आंगनवाड़ी सेंटर होता, मैं भी चाहता कि मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी खाता। देखो ये एक जाहिर बात है, मैं ये चीज किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं। और आंगनवाड़ी सेंटर में जो डाइट आती थी वो उन बच्चों को देनी थी, और आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर का काम ये था कि उन बच्चों को हफ्ते में एक बार देखना, कोई बीमार तो नहीं पड़ा, उसकी रिपोर्ट देनी। मेरे आंगनवाड़ी जो मेरा एरिया आता है, जिस एरिया तक मेरी आंगनवाड़ी की सर्वे है, इसमें सबसे पहले एक सर्वे बनती है, पूरे गांव की सर्वे बनती है। उस सर्वे में ये चीज होता है कि हर घर में कितने लोग हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, और आगे उसकी एक समरी बनती है
जो मैंने खुद भी समरी बनाती है और हर साल बनाता भी हूँ। उस समरी में ये लिखा जाता है कि 50 साल से ऊपर कितने हैं, 40 साल से ऊपर 50 तक कितने हैं, 30 से ऊपर कितने हैं, पूरी डिटेल लिखी जाती है। और सबसे छोटा जो है, जैसे कोई एक नर्सिंग मदर होती है जो बच्चे को दूध पिलाने वाली होती है, वो मेरे इस एरिया में कितनी है, और मेरे एरिया में प्रेग्नेंट वुमेन कितनी है, मेरे एरिया में एडोलेसेंस गर्ल्स कितनी है, और फिर उनका एक शेड्यूल होता है कि कितनी एडोलेसेंस गर्ल उसमें एनरोल करनी होती है, और कितनी प्रेग्नेंट वुमेन करनी होती है, और कितनी नर्सिंग मदर्स जो है वो करनी होती हैं, और कितने बच्चे करने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आम लोगों के बीच में एक अफवाह जाती है कि वो सोचते हैं कि जितनी इन्होंने सर्वे की है घरों की, तो सब बूढ़े से लेके बच्चे तक का राशन आंगनवाड़ी में दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी आंगनवाड़ी सेंटर अपना पूरा सर्वे बना के, उसका आगे समरी बना के अपने दफ्तर में जो सीडीपी ऑफिस होता है वहां पे पहुंचा के देते हैं, तो वहां से खास करके 3 और 4 साल हुए अब बहुत कम राशन मिल रहा है वहां से, बहुत कम, यानी कि तेल बोतलों में मिलता है। तो वो आंगनवाड़ी सेंटर वाला जो है आगे किस किस को देगा, कितना देगा, बहुत बड़ा घोटाला इसमें है। और ऊपर से इनकी तनख्वाहें कितनी है, मैं बता रहा हूं कि जितनी इनकी तनख्वाहें, इतना मीटिंगों में जाने के लिए किराया मसा पूरा होता है, क्योंकि हफ्ते में एक बार मीटिंग होती है हेल्पर और वर्कर की। अगर हफ्ते में नहीं हुई तो 2 हफ्ते में एक मीटिंग, अगर 2 हफ्ते में नहीं तो महीने में 2 मीटिंगें होती हैं। तो आपको मालूम है आज हर जगह गाड़ी जाती है, और फार फ्लंग एरिया है, किराया गाड़ियों का ज्यादा है, 2 ही फेरे में उसका 1000-1200 रुपए किराया जो है वो चला जाता है, और उसका खाना शाना ये वो इधर उधर करके वो तनख्वाह उसकी महीने की उधरी चले जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब तक ना पूरा गवर्नमेंट इसके ऊपर, अगर मेरे पास बच्चे 30 हैं, उस 3 बच्चों के लिए बराबर मखसूस वहां से राशन आ जाएगा, कितना कितना देना है, तो उस हिसाब से इसमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। लेकिन जब सिस्टम ही सारा खराब है, ये आंगनवाड़ी की बात नहीं है, ये हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सिस्टम में खराबी चल रही है आज। ये दुरुस्त होना, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर हमने करप्शन को खत्म करना है, हमने सबसे पहले खुद ईमानदार होना है। अगर हम खुद, अभी फारूक साहब बोल रहे थे कि कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही है, मैं डोडा में हूं। देखिए, अटेंडेंस में अल्टरनेट बिल्कुल सही, उस बंदे ने सही भी कहा होगा, क्यों इसमें अल्टरनेट है। इसमें अगर मेरी हाजिरी लगनी है, अगर मैं यहाँ ना भी हूं, तो अगर 5 आदमियों की एक शीट बनी है, उन 5 आदमियों की हाजिरी लगती है, चाहे मैं वहां पे ना भी हूं, लेकिन हाजिरी मेरी लग जाएगी, मेरे नाम की हाजिरी लग जाएगी। उसने सही भी कहा होगा, लेकिन सही सिर्फ उसने इसलिए कहा कि खुद, मैं गलत इसलिए उसको मानता हूं कि खुद वो डोडा में था। अगर वो खुद वहां पे प्रेजेंट होता तो उसकी हाजिरी नहीं लगती, तो तब जाके वो शिकायत करने का हकदार था कि नहीं जी वो वहां से दूसरी जगह थे, उनकी हाजिरी नहीं लगी। भाई उनका अपना लिहाज है, उन्होंने कैसे लगवाई है। अब अगर आप जरूरत है, जैसे फारूक साहब ने उसको कहा कि आप वो शीट निकाल लीजिए और वेरीफाई करवा लीजिए। देखिए, ये लोग जो है ना, ये लोग चाहते हैं कि यही लोग लड़े, जो लोग हमारे लिए दफ्तरों में भी जाके काम करते हैं, ये लोग लड़ने चाहिए, उन लोगों के साथ भी तो दफ्तरों में भी लड़ने चाहिए। तो बदकिस्मती ये है कि हम लोग जब तक न सुधर जाएंगे तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। ये मेरा एक तजर्बा है, क्योंकि मैं 20-22 साल से लेके पॉलिटिक्स में हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ, मैंने देखा, सारा सिस्टम मैंने देखा। अभी मैं एक चैनल पे डिबेट देख रहा था, कोई 1.5 घंटे मैंने देखा, और कम से कम 20 बार मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि मुझे ऐड कर दो। वहां पे दो डिबेट, उसका चैनल का नाम है, फेसबुक लाइव था वो, मोहम्मद रफीक नाम से वो चैनल चल रहा है। वहां पे कुल मिला के उन्होंने टोटल एमएलए साहब की खिलाफत की। न जाने उनको ये मालूम हुआ कि कहीं ये बंदा जो ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये कहीं सच तो ना बताए। मोहम्मद शफीक होता, मोहम्मद शफीक। हाँ, मोहम्मद शफीक नाम मुझे से। भी तो नहीं किया, मैंने भी किया, लेकिन मुझे भी नहीं ऐड किया। उन्होंने ऐड नहीं किया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, डिबेट को तब सही हम माने जब हम सही को सही और गलत को गलत कहें। उनका जो डिबेट था वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स एंड पब्लिक बिटवीन रिलेशन क्या क्या होती है और कैसे होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के उन्होंने वहां पे टोटल एमएलए साहब की खिलाफत की। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। अगर मैंने उनको 10 बार रिक्वेस्ट करी कि मुझे ऐड करो,
ان کو مجھے ایڈ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ کہیں میں بھی ایسا جواب دے دیتا جو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا. دیکھیں انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر ملازم جو امپلائیز ہوتا ہے اور ایک پولیٹیشین ہوتا ہے, اگر ان کے بیچ میں جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مطلب نہیں رہے گی, لیکن دیکھنا یہ چیز ہے وہ رہے گی کیوں نہیں. اگر ایک ایم ایل اے بار بار چلا کے کہتا ہے ایک آفیسر کو کہ بھائی غریب آدمی کا کام کرو, اگر وہ غریب آدمی کہیں پہ چاپلوسی کرتا ہے, غلط کرتا ہے, تو وہ آفیسر اس وقت ایم ایل اے کو فون کر سکتا ہے, بھائی آپ کا ووٹر آپ نے جس کی سفارش کی تھی وہ اس طرح سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کم سے کم اس کے سر بھی تو کوئی ذمہ داری جاتی نا. لیکن بدقسمتی سے یہ چیز ہے. دیکھیں فاروق صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, بہت گھوٹالا ابھی بھی چل رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ میرے اس میں نے پرسوں ویڈیو صاحب کو 1 گھنٹے میں نے میٹنگ لی ویڈیو صاحب سے. میں نے کہا ویڈیو صاحب دیکھیے 31 مارچ کے بعد حساب لیا جائے گا, پھر یہ چیز نہیں بولنا. میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں, میں آپ کے سامنے سر جھکا کے بات کر رہا ہوں اور بڑے احترام سے کر رہا ہوں. 31 تاریخ کے بعد بھی میں احترام سے ہی بات کروں گا, لیکن 31 تاریخ کے بعد مجھے پین اور ڈائری لے کے آنا ہوگا, میں حساب لوں گا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, ہم پچھلے سال اپنا پلان لکھواتے ہیں, اس میں 400 کارڈ ہوتے ہیں. 400 کارڈ کے لیے ہم ڈیمانڈ دیتے ہیں کہ 400 کارڈ کے لیے کام دیا جائے گا. جب 400 کارڈ کے لیے کام اوپر سے سینکشن آتا ہے تو یہاں پہ اس کی لیکیج ہوتی ہے. یہاں پہ جو جی آر ایس اور جو پرانے کچھ پولیٹیشنز ہیں, ایکس وارڈ ممبر ہو اس میں, یا ایکس سرپنچ ہو, یا ایکس بی ڈی سی ہو, ایکس ڈی ڈی سی, کوئی بھی ہو, واٹ ایور, وہ ان ملازموں کے ساتھ اچھا رسوخ لگا کے ایکسس نئے کارڈ کرتے ہیں بیچ میں, اور کارڈ بھی ان لوگوں کے جن کے گھر میں آلریڈی کارڈ ہوتا ہے. اور ایکسس کارڈ کرنے کے بعد جب اس جو فنڈز ہوتی ہے اس کی لیکیج ہوتی ہے, تو جو اوریجنل کارڈ ہولڈر ہوتا ہے وہ بیچارہ, اس کو بیچارے کو پورا پیسہ, پوری حاضری نہیں ملتی ہے. اور اسی طرح سے آج تک ہوتا آیا. میں نے ویڈیو صاحب کو کہا کہ آج تک یہی ہوتا آیا, میں اس کے خلاف میں بار بار آپ کے دفتر میں آیا, لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہوا. لیکن آج کے بعد ایکشن ہوگا, کہیں آپ پھر یہ نہ کہنا کہ اب غلط ہو گیا, کہیں آپ کو اپنے جیب سے نہ بھرنا پڑے یا جی آر ایس کے جیب سے نہ بھرنا پڑے. اور دوسری چیز, میری طرف سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے, جو بھی جاب کارڈ ہولڈر ہیں, اگر وہ خود بھی حاضری لگاتے ہیں, لیکن خدا را کم سے کم کام کی پراگرس دے دیجئے, کچھ پراگرس دے دیجئے, اپنی کمائی کو حل حل کر کے کھا لیجئے, تاکہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور اوپر والا بھی آپ کی دعاؤں میں اثر ہوگا, آپ کی دعا کو وہ سنے گا. نہیں تو یہ سب فضول ہے. دیکھیں ہم لوگوں کو عادتیں خراب ہو گئی ہیں, ہمیں اپنی عادتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, درست کرنی پڑیں گی, تب جا کے ہم انقلاب لا سکتے ہیں, تب جا کے ہم کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں, تب جا کے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی ایک اچھے انسان یہاں بھی رہیں گے اور آخرت کے لیے بھی اچھے انسان بن کے جائیں گے. نہیں تو یہ سب بالکل ہم جو کر رہے ہیں یہ سب ہم دکھاوا کر رہے ہیں. بالکل. چلیے ہمیں بات آج آنگن واڑی پہ کرنی تھی, لیکن بیچ بیچ میں یہ کہیں نہ کہیں پھر سے نریگا پہ چلی جاتی ہے بات. چلیے کوئی بات نہیں, لیکن کمنٹ ایک آیا ہے راجہ سجاد کی طرف سے, درا بی وارڈ نمبر 5 میں ایک سینٹر ہے, سال میں ایک بار کھلتا ہے. فاروق صاحب آپ کو میں بتاتے چلوں, شاید میں نے بھی سنا تھا کہ پنچایت درا بی میں ٹوٹل 2 سینٹر ہیں, لیکن یہ تو کہہ رہے سال میں ایک بار کھل رہا ہے. میں نے تو شاید زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. وہ سینٹر ہے کہاں پہ؟ میں تھوڑا سا میں بیچ میں, پھر اس کے بعد فاروق صاحب بولیں جی گے. جی جی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, آنگن واڑی سینٹر کیا یا ورکر کیا یا ہیلپر کیا, یہ بالکل چھوٹے لیول کے ملازم ہیں, بالکل چھوٹے لیول کے ملازم ہیں. یعنی کہ ان سے چھوٹی جو ہے نہ کوئی پوسٹ ہے, چاہے آپ ڈیزگنیشن کے لحاظ سے لے لو یا آپ سیلری کے لحاظ سے لے لو, یا جو ان کو کام سونپا دیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے لے لو, یہ بالکل چھوٹے لیول کا کام ہے. لیکن لوگوں نے آنگن واڑیوں پہ بڑے لیول کے ایکشن کیے. کام چھوٹے لیول کا ہے, مسئلہ چھوٹے لیول کا, لیکن بڑے لیول کے ایکشن کیے. خیر جو جائز ایکشن ان پہ بنتا ہے وہ لینا ضروری ہے. ایک تو پریزنٹ ہیلپر اور ورکر پریزنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ بھی پرابلم آنگن واڑی اس ایریا میں اگر آ جائے گی ریلیٹڈ کسی وومن سے ریلیٹڈ, تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آنگن واڑی سینٹر میں ہوتی ہے, جو ورکر ہیلپر ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے. لیکن اتنا بھی نہیں کہ شکار ہوگا, وہ کہتے ہیں نا چھوٹے ایک جانور کا, تو اس ہتھیار ہم استعمال بڑا کرتے ہیں, شیر کا ہتھیار ہم استعمال کرتے ہیں.
یہ بھی تو تھوڑی اس میں بھی احتیاط برتنا ہے، کیونکہ آنگنواڑی لوگ بھی اپنے ہی ہیں، اور ان آنگنواڑی سینٹرز جن لوگوں کے لیے کھولے گئے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ہی ہیں. دونوں طرف ہم نے دیکھ کے اس چیز کو چلانا ہے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ سال میں ایک ہی بار کھلتا ہے وہ. دیکھیں وہاں پہ فاروق صاحب ہیں، فاروق صاحب جائیں گے، اس کو پتہ کریں گے، اس کو ایک دو بار وارننگ دے کے سمجھائیں گے، اگر اس کی کچھ غلطیاں ہوں گی وہ درست کریں گے. وہ بھی کوئی ہماری طرح ہوگا، ہماری بہن وہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارے ماں کے سامان ہوگی، بہن کے سامان ہوگی یا بیٹی کے سامان ہوگی، اس کو سمجھائیں گے بڑے طریقے سے. اگر کوئی اس کو پرابلم ہے، کوئی دقت ہے، وہ اس کو درست کرے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، اور بھی ایک وجہ ہے. آنگنواڑی سینٹرز کہیں جگہوں پہ بلڈنگ کے لیے رومز بھی دیے گئے، ایکوپمنٹ بھی دی گئی، لیکن کچھ سینٹر ایسے ہیں جن لوگوں کو سامان بھی کچھ نہیں دیا گیا ہے، صرف ایسے ہی راشن تھوڑا سا دیتے ہیں، سینٹر چلاؤ. کیونکہ جب دیکھیے پچھلے 10 سال سے لے کے سرکار تھی نہیں، تو گورنمنٹ جیسے چل رہی تھی تو ایز اٹ سب چلا رہے تھے اس کو ویسے. یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور دوسری چیز میرا ایک میسج رہے گا سبھی حضرات سے، جو بھی ابھی میڈیا پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایم ایل اے صاحب کو کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے ارے جناب ابھی وقت ہی کیا ہوا، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. جب سال 2 سال 3 سال میں ایم ایل اے صاحب کچھ نہیں کریں گے تو ہم کیا اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ٹھکرا کر اس کو بنایا ہے؟ جب کچھ نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں گے. لیکن خدا را پہلے صبر تو کیجئے، تھوڑا سا ہی وقت ہو گیا، اتنے کم وقت میں ہم ایسا ڈیسیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. جو ابھی تک کیا وہ بہت کچھ کیا، لیکن جو کرنے کے لیے ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. کمنٹ آیا کہ پے کتنی ہے ان کی. دیکھیے پے کا سوال نہیں ہے، میں آپ کو نہیں، ایک چیز بتاؤں گا. جب ایک کمنٹ آیا ہے. بالکل بالکل میں اس کمنٹ کا جواب دے رہا ہوں. جو میرا بھائی کمنٹ لکھ رہا ہے بہت اچھا کمنٹ لکھا اس نے. جب ایک کے ایس آفیسر جب کوالیفائی کے ایس کرتا ہے اس کی تنخواہ شروع ہوتی ہے، لیکن 1 سال تک اس سے کام نہیں لیا جاتا ہے. 1 سال تک اس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، 1 سال کے بعد اس کو کام دیا جاتا ہے، اس سے پروگرس لی جاتی ہے. جی جناب، جو راشن آتا ہے چاہے کم آتا ہے یا زیادہ آتا ہے، وہ تو ہاں انہیں بچوں کو جی کھلانے. بالکل وہ دینا، بالکل صحیح بات کہی ہے اس نے جس نے کمنٹ لکھا ہے. چاہے کم آ جائے چاہے زیادہ آ جائے، وہ ان لوگوں کی امانت ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اس پہ اس کے لیے میں بھی خلاف ہوں. چاہے وہ کم آئے، 4 ہی دانے آ جائے، 2 آدمیوں کو کھڑا رکھ کے ان کی ویڈیو بنا کے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس طرح سے میرے آنگنواڑی سینٹر میں چل رہا ہے، جو بھی آتا ہے ان کی ویڈیو بن کے، اور وہ جو ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. ہمارے بچے آنگنواڑی سینٹروں میں یہاں پہ داخل ہیں، لیکن بندے ہیں ڈیرے پہ کہیں پہ، وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کاٹنا نہیں، جو راشن بنتا ہے ہمیں سوکھا دے دینا، ہم آپ کو جو بھی جہاں پہ سائن دینا ہوگا ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. ایسا ہم لوگ خود ہی کرواتے ہیں نا. میں نے کہا نا آپ کو کہ ہم ہی لوگ جو ہیں جی آر ایس کو یہ کہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، اگر میرے گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 آدمی اگر میرے گھر میں ہیں، میں باپ ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، میری بیوی اور 3 بیٹے ہو گئے 5. ہم ایک کارڈ مجھے گھر میں ملتا ہے، جاب کارڈ ایک ملتا ہے. چاہے میرے گھر میں 5 بھی ہوں گے، وہ 5 کے 5 ایک ہی کارڈ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اب اگر میں جی آر ایس کے ساتھ مل کر اس کو کہوں گا ارے جناب ایک کارڈ مجھے اور بنا دیجئے بچوں کا، میری شادی بھی نہیں ان کی، لیکن آپ بنا دیجئے، آپ کو جو اس میں چڑھے گا 20-30 ہزار روپے، تاکہ یہ لاکھ کا کام مجھے ہی ملتا، میں 10,000-20,000 آپ کو بھی دے دوں گا. ہم ہی تو غلط کرواتے ہیں. جب ہم غلط نہیں کروائیں گے تو ہم غلطی کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا یہاں سے لے کے دلی جائیں، جموں جائیں، وہاں تک پیچھا کریں گے. تو کسی کا جو یہ سوال ہے کہ راشن جتنا بھی آ جائے، بالکل یہ صحیح بات ہے. یہ اس کے لیے جو آنگنواڑی ہیلپر یا ورکر ہے اس کے لیے ٹوٹل حرام ہے. وہ ٹوٹل حرام ہے وہ اس میں کھانا، کیونکہ اس کو تنخواہ ملتی ہے. وہ بچوں کا راشن جن بچوں کے نام پہ آیا ہے ان کو جائے، پھر کم جائے یا زیادہ جائے، سوکھا جائے یا بنا کے جائے، لیکن ان تک وہ پہنچنا چاہیے. چلیے نیاز صاحب، آپ نے اچھی بات کی، لیکن اب فاروق صاحب سے میرا اسی متعلق ایک سوال رہے گا کہ اگر کہیں پہ آنگنواڑی سینٹر 1 سال بند رہتا ہے، سال میں ایک بار مطلب کھلتا ہے، ان کو جتنا بھی راشن آتا ہے بچوں کے لیے، کیا وہ راشن کہاں جاتا ہے؟ اور وہ سال میں ایک ہی بار کیوں کھولتے ہیں؟ فاروق صاحب، اس پہ کوئی ایکشن ہوگا کیا آگے؟ میوٹ ہے فاروق صاحب، میوٹ ہے آپ کا.
आपका माइक म्यूट है फारूक फारूक साहब। साहब म्यूट है, चलो। माइक खोलें। वो एक कोई मौलवी साहब थे ना गांव में, तो उसको किसी ने जाकर शिकायत की, कहा जनाब मौलवी साहब हमने सुना कि यहाँ जो है कई लोगों ने जो है गधा खाया। तो उसने कहा अब क्या वो हलाल है कि हराम है? कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बार आप ये कैसा सवाल करते, वो तो टोटल हराम है। कहा नहीं मगर मौलवी साहब आपका बेटा भी उन खाने वालों में था। कहा ओहो, फिर तो लाल किताब को देखना पड़ेगा कि ये हलाल है कि हराम है। मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहूंगा कि जो ये शिकायतें करते हैं ना, सबसे बड़े खराब लोग यही हैं, यही सबसे बड़े मुजरिम हैं, और चोरी और गलत करने का यही मौका देते हैं उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे वो कोई भी मुलाजम हो, जीआरएस हो या बेचारी आंगनवाड़ी वर्कर हो या उसकी जो हेल्पर हो वहां पे। जैसे नियाज साहब ने अभी कहा कि मैं तो खुद ही कटेरे में खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि इनकी जो अहलिया हैं वो भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं और मैं भी कोई इसमें पीछे नहीं हूं। मेरी माँ जो है वो भी रिटायर हुई है एज आंगनवाड़ी वर्कर। अब इल्म हमें बराबर है इस सब का कि ये क्या है। जब तक लोग बजाते खुद लिहाज करना नहीं तोड़ेंगे तब तक पूरे पूरे माशरे में जो है बुराई जो है वो खत्म नहीं होगी। चोरियां या नुकसान जो आवाम को पहुंच रहा है कि इदारे जो हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार वही हैं क्योंकि वो अपने आप को या कश्र में शिवनान कि तिम छिन पनुन बुथ लागुन चाहन कहते तिम चाहन यम मीलमित यम कह मोंड काट यम लगित शोर कर लुकन हंद तरफ यम काम करनावो एमन निश। मतलब ये मसला है कि मेरी मदर जब मतलब आंगनवाड़ी वर्कर थी, वो रिटायर हुआ गालबन 1 साल उनको रिटायर हुए को, पर मुझे याद है कि मतलब अब वो करीबन करीबन 60-62 साल एज होगी या मेरे ख्याल में 65 साल उम्र होगी। तो वो रोज सुबह क्या करती थी, हम यहाँ सेंटरस गसुन मे सेंटरस गसुन अहमद से क्या सेंटरस मज करुन दपन ना 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 बह गस सुबह तथ पन्ने पान गसुन या 60-65 साल की उम्र में लाक खोलना और न्यूट्रिशन जो है निकाल के हेल्पर को दे देना कि आप ये न्यूट्रिशन बनाओ और फिर जाकर जाना वाकईतन 10-10:30 बजे से 1 बजे तक वहां बैठना और सबको खिलाना, उसके बाद वहां से वापस आना। अब मतलब हम ये ठीक उसी पंचायत में देखिए, आज भी आप पूछिएगा उन गांव वालों को, भले ही मेरे मुखालिफ होंगे, वो मेरी फैमिली के मुखालिफ होंगे, लेकिन इस बात से वो इनकार नहीं कर पाएंगे कि वो सेंटर नहीं खुलता था, पूरा 1 महीना खुलता था और उसके बाद क्या हुआ, वहां नई पोस्टिंग हुई, आज भी चल रहा है। लेकिन उसके साथ एडजॉइनिंग में भी सेंटर हैं हमारे घर के वहां मुलाजम हैं। मैं बता दूं कि वो उस मोहल्ले में हेल्पर तो काम करती रहती है मगर वर्कर जो है कभी जाती नहीं है ड्यूटी पे। अब जब उन गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे और आपको तकलीफ क्यों है? जिनके साथ जुल्म किया जाता है वो लोग सामने आने के लिए तैयार नहीं। महराज का सियासत में आना सिर्फ एक ही मकसद है कि उसने कहा कि डीसी को भी खुद फोन करो। तो आप क्या प्रोग्राम ऑफिसर को फोन नहीं कर सकते हैं? आप आईसीडीएस ऑफिसर को फोन नहीं कर सकते हैं? इससे पहले आपके सरपंचेस थे, मेंबर्स थे, वो क्या काम कर रहे थे? वो भी लिहाज पार रहे थे, तभी तो वो फेल हो गए हमारे तमाम इदारे। और इंशाअल्लाह आने वाले कल में जब नए पंचायती इलेक्शन होंगे तब उससे पहले हम इन सबको ठीक करेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन महराज साहब को आप डोडा आने दो, हमें एक जो है कोर मेंबर्स की मीटिंग करने दो और हम ये सवाल जो है उनके टेबल पे रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी बिहाफ से, आपकी तरफ से क्या एक्शन है जी, क्या करना है हमने।
हमने इनकलाब के नाम पे वोट लिया है, हमारे स्कूल चलने चाहिए और बेहतर चलने चाहिए, और हमारे सेंटर्स जो हैं वो बेहतर चलने चाहिए। अगर वो बेहतर नहीं चलेंगे तो फायदा क्या है? 1 साल से वो नहीं खुला। यहाँ कूशा एक पंचायत है, 15 साल से मैडम सेंटर में नहीं गई है। 15 साल, सुन रहे हैं आप? अब 15 साल से अगर वहां जो है आंगनवाड़ी वर्कर नहीं गई, कोताही किसकी है? 2-3 सरपंच बने उस पंचायत के, हैं 7-7 मेंबर बने। उस वार्ड का भी जो मेंबर बना है पिछले 15 साल से, जब मैडम वहां नहीं थी, वो क्या काम कर रहा था? तो अगर इस पे बात करते रहेंगे, मैं सिर्फ हमेशा, आप देखिए, वो बात करता हूं, अब उनकी तनख्वाह क्या है क्या नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उनको राशन जितना आता है ईमानदारी से वो तो हम दे देंगे लोगों को, लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर का मतलब है कि उनको स्कूल की तरह खोलना है। वहां मैडम ने ड्यूटी करनी है, बच्चों को खिलौने देने हैं, खिलौनों से उनको खेलने का मौका देना है, हैं? एक्सपोजर देना है। उन खवातीन जो हैं वहां पे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको मेडिसिन भी देनी है, उनको भी राशन आता है दोपहर के वक्त, उनको भी छोटा सा 100 ग्राम या 200 ग्राम का जो भी शेयर उनका आता है वो उनको देना है? मेडिसिन आती रहती है, वो लोगों में बांटनी है। मतलब मैं कहता हूँ ये एक तालीमी इदारा है, छोटा मोटा जो है तालीमी इदारा है, इसको एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। हमने सिर्फ राशन के लिए नहीं लड़ना है, यहाँ से आगे हम इसको बेहतर चलाएंगे। तो इस वक्त दूसरे फ्रेम में दूसरे साथी हैं, गालबन ये मलना से गुलाम अहमद साहब है। जी। ये आप देख रहे हैं, इनका सर जो है ये पट्टी वगैरह बांधी हुई है, और हो सकता है इस इशू के बारे में आपको पता होगा कि अब जो है अब ठेकेदारों से भी डरना है। अगर ठेकेदार के खिलाफ कोई, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा, आप क्या कहते हैं कि आप कंप्लेंट करो भाई, आप काम कराओ, आप कामों पे चेक रखो भाई, कामों पे नजर रखोगे। गया था ये एक बंदा काम पे नजर रखने, हैं, इसको 5 किलो की ईंट या क्या सर पे मार दिया और इसका सर फाड़ दिया। गालबन 8 से 10 टांके जो हैं इस शख्स को लगे हैं। अब मुझे बताओ, कोई शख्स किसी ठेकेदार के काम पे जा सकता है? ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? ये गुंडाई नहीं है। बिल्कुल सही बात। अगर एक तरफ से मेरा ये भी यार दोस्त है, दूसरी तरफ से वो शख्स भी मेरा यार दोस्त है, लेकिन यारी दोस्ती आम आदमी पार्टी के सामने तभी है जब तक आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जब तक आप इंसानियत का लिहाज पास रख रहे हैं। अगर आप उन हदूद को फलांगेंगे तो हम आपके भी खिलाफ हैं। इसमें यह नहीं कि आप मेरे अपने हैं या रिश्तेदार हैं और आप लोगों का सर फाड़ देंगे। इसी तरीके से इस वक्त दूसरी पंचायतें हैं, सील में भी यही इश्यूज चल रहे हैं, लोग कंप्लेंटें कर रहे हैं, कोई वीडियो कोई एसीडी नहीं सुन रहा है? इस शख्स ने कंप्लेंट क्या की वीडियो को, और उसके बाद इस पर अटैक हो गया, इसको हॉस्पिटल लाना पड़ा, उसको वहां जो है FIR देनी पड़ी वहां पे। मतलब हालात ऐसे हैं। मैं जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इसको देखेंगे हम, इस शख्स के साथ क्या हुआ, तो काम पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आप अपना सर या कोई और जो है अंग जिस्म का तोड़वाना नहीं, क्योंकि इस वक्त जो है ये माल के उस नशे में, पैसे के नशे में, ठेकेदारी के इस नशे में चूर है। कहीं इस मजदूर के साथ या आम जनता को जो है वहां जाएंगे, वो काम करो जी, अच्छा काम करो, ये वो करो, तो उनको खबर न जाने किस किस रंग से तकलीफें पहुंचाई जाएंगी। इसलिए गांव वालों को भी चाहिए कि वो मिलजुल के जाएं। अपने जो भी काम गलत हुए हैं, सब बेईमानियां करते हैं, सब बेईमानियां करते, जो लिहाज पालते हैं हम लोकल ठेकेदार का या लोकल किसी शख्स का भी या लोकल मुलाजम का, हम जो उनका लिहाज रख रहे हैं, फिर रोना रोते हमारे साथ जुल्म हुआ। जुल्म स्टार्ट होते वक्त ही जुल्म को खत्म करना है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो जो ही काम शुरू करेगा सब महले को वहां खड़ा रहना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे गांव की, हमें यहाँ खड़ा रहकर काम कराना चाहिए। इसलिए मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मिलजुल के इस नेक्सस के खिलाफ, ये जो आज जो है मतलब गरीब लोगों को दबाकर जो है, गरीब लोगों का जो पैसा है वो कैपेक्स की सूरत में है या नरेगा की सूरत में है या और किसी काम की सूरत में है, अगर वो लोग जो है दादागिरी करके जो है इस वक्त गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं और एम्प्लॉइज भी बराबर उनका साथ दे रहे हैं, तो ये बराबर के मुजरिम सब लोग हैं। इसलिए लोगों को घरों
से बाहर निकलना चाहिए। यही महराज ने सिखाया था कि जहां गलत काम हो रहा है उस गलत काम को रोको। हालांकि वो शख्स ये कह देता था कि उसको उखाड़ दो अगर आपकी प्रॉपर्टी गलत बन रही। आज ही उसको ठीक किया जाए, वरना कल कल अगर उस पर काम तैयार होगा फिर हम ऑब्जेक्शन करेंगे। उस वक्त कोई राइट हमारा नहीं बनता है कि बने हुए काम को कोई जेई या बीडीओ आकर उखाड़ेगा। लेकिन इस शख्स के साथ जो ज्यादती हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस शख्स के खिलाफ। अगर उसको ये हक नहीं है, कानून ने उसको ये इजाजत नहीं दी है कि वो जो है कानून अपने हाथ में लेकर जो है किसी शख्स को जो है इस किस्म की अजियत दे या उसको जख्मी करे या न जाने उसकी साजिश क्या होती, उसकी सोच क्या होती। ये तो मेरे रब का करम है कि ये शख्स जो है बाल बाल बच गया। नाजुक जो है सर के ऊपर पत्थर मारा है। मैंने वो फोटो भी देखा है, जो अगर आप चाहे आपको भी सेंड कर दूंगा कि इनके साथ क्या सलूक किया गया। इसलिए चलिए, आखिर में यही कहना चाहूंगा बिल्कुल कि गुलाम आवाम को मोहम्मद से चाहिए कि वो अपना डिफेंस भी रखें। जी गुलाम मोहम्मद से बात करने की कोशिश करेंगे। गुलाम मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? गुलाम मोहम्मद साहब, आप हमें बता दीजिए उस टाइम पे क्या हुआ था जिस टाइम पे ठेकेदार ने आपके ऊपर हमला किया। सलाम। बस बढ़िया जनाब। उस टाइम पर ये हुआ कि जब वीडियो साहब वहां पर आए, पहले वहां पर जेई साहब आए थे। जेई साहब ने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करना है, आपने इतना बनाना है। उसने अपने हिसाब से बनाया या जेई के हिसाब से बनाया। उसके बाद जब वीडियो साहब वहां पर आए, वीडियो आप साहब ने बोला कि जी आपको जी अभी 21 फुट और करना है। ये नहीं बोलना था बस, यानी आपने बोला 21 फुट करना, आपके ऊपर हमला हुआ। 21 फुट और करना है, यही बस, यही मैंने जी, बोला। तो उसके बाद मुझे पता नहीं है इसने क्या किया तो क्या नहीं। वीडियो साहब ने बोला है, वीडियो साहब ने सामने बोला उधरी कि ये जो मटेरियल आपने लगाया ये भी गलत लगाया, और दूसरा आपका जो मलन का समझो उसको 22.68 किलोमीटर करना था, उसको उसने 15 किलोमीटर किया। और दूसरा बोलने लगा मैंने जेई यहाँ पहुंचाना है, उसको मैंने 700 का तेल डाला है, फिर जेई साहब को इतने हजार देने हैं, मैंने इतना ही करना है। मैंने जब वीडियो साहब वहां पर पहुंचे, उन्होंने बोला उसको उस वक्त कैसे उसको कम क्वांटिटी आई और उस पहले क्या वो ज्यादा आई थी। मसला यही हुआ। उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि माफिया माफिया माफिया, ये कौन सा माफिया है? और ये महराज साहब का खास वर्कर है। अगर महराज साहब के वर्करों ने ऐसा किया, मतलब हार्ड वर्कर है ये भी। अब ठेकेदार है, ठेकेदार उसकी बीवी है, मतलब वर्कर ये है। अगर वैसे ऐसे करना होगा फारूक साहब, फिर तो इनका मतलब कहना है कि वो दुनिया आम मर आदमी जाएगी। पार्टी का बंदा है, खास वर्कर है। जी, हमने कोई परमिट, हमने या मैंने या खुसूसन महराज साहब ने परमिट किसी को लिख के नहीं दिया है कि वो आम आदमी का पार्टी है और वो जो चाहे सो करे। ऐसा कुछ नहीं है। कानून की नजर में पार्टी का बंदा होना कोई मैटर नहीं करता है। जो कानून अपने हाथ में लेगा, कानून जो है, कानून जिंदा है, पुलिस की सूरत में, एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत में, अदालत की सूरत में। तो इसका मतलब क्या, आम आदमी पार्टी के यहाँ अरविंद केजरीवाल को भी तो अंदर अरेस्ट किया था। वो तो पार्टी का सुप्रीमो था, वो क्यों अंदर गया? उसके 4 मंत्री अंदर क्यों गए? कानून जो है वो सबसे बड़ा है। तो कानून की नजर में सब पार्टियों के लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। और जो कानून का उल्लंघन करेगा, जो कानून अपने हाथ में लेगा, तो कानून उसको अपने हाथ में वापस ले जाएगा और वहां सीधा करके वापस भेज देगा। इसमें कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी का अगर फारूक भी गलत करेगा तो ये भी बराबर सजा का मुस्तहिक होगा। अगर हमने किसी का जो है हक दबाया होगा या किसी के साथ जुल्म किया होगा, तो हमारे जो है कानून की रोशनी में हमें उस चीज का जो है बदला दिया जाएगा, सजा दी जाएगी अगर हम वायलेशन करेंगे। तो मैं यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूंगा, मैं अपने आप को भी कहता हूँ और तमाम साथियों को कहता हूँ कि आपको ये गुमान और गुरूर नहीं होना चाहिए कि आप महराज
आफ्ताब मलिक के साथी हैं, एमएलए के साथी, आपने हमें वोट दिया है और आपने सपोर्ट किया है, और इसके बाद आप जो है आवाम का गला घोंटने बैठेंगे या आवाम को जो है पत्थर मार मार के उनको जो है मार डालेंगे? ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की नजर में तमाम वोटर्स, तमाम जितने भी लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। हम उनके जो है इस वक्त यहाँ पे लीड करें, उन लोगों ने मैंडेट दिया है, तो हम सब की यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ऐसा कोई ना समझे आम आदमी पार्टी का है तो बस वो ये करेगा वो करेगा, नहीं, कानून की नजर में सब बराबर हैं। जो भी गलत करेगा उसको उसकी सजा मिल जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए, टाइम भी काफी लेट हुआ है। सदीक साहब, अब आप अपनी आखिरी बात रखें, क्योंकि आज आंगनवाड़ी पे बात करनी थी, लेकिन बीच में हम नरेगा पे भी चले गए क्योंकि कुछ सवाल आ गए, इस वजह से नरेगा के ऊपर जाना पड़ा। सदीक साहब, आखिरी बात आप आंगनवाड़ी सेंटर के हवाले से लोगों तक। सदीक साहब, आपका म्यूट है। अभी फारूक साहब ने बहुत अच्छी तरह से आंगनवाड़ी सेंटरों के लिए बारे में समझाया, लेकिन मैं आंगनवाड़ी सेंटर के लिए यही नहीं कहूंगा कि ये खाली राशन देने के लिए नहीं है। देखिए, हमने सिर्फ राशन के ऊपर इसको महदूद रखा है। आंगनवाड़ी का मकसद था, ये जो हमारी नौनिहाल फसल है, बच्चे हैं छोटे, यानी शायद फारूक साहब एजुकेशन में 11th में पहला ही चैप्टर था शायद, वो एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह, जिसपे खासकर आंगनवाड़ी पे ही ज्यादा जोर दिया जाता था कि हमने बच्चे को कैसे तैयार करना है। प्री प्राइमरी एजुकेशन देनी होती है। वहां पे आप जाओगे खाली राशन खाने, राशन तो आप घर में भी खाते हो, बल्कि बच्चे को वहां पे तैयार करना है स्कूल के लिए। जैसे आज जैसे ये जो किंडर्स गार्डन्स वगैरह स्कूल निकले हैं, केजी वेजी वगैरह, पता नहीं कौन कौन से स्कूल, ये तो आंगनवाड़ियों का काम था। आप मुझे बताइए, आंगनवाड़ी सेंटरों में आपको चार्ट्स दिए जाते हैं, आपको डिजिटल क्लासेस आंगनवाड़ी सेंटरों में लगती हैं। गालबन घाट ब्लॉक में पिछली बार 2 की 3 आंगनवाड़ी सेंटर जो है डिजिटल आंगनवाड़ी सेंटर के लिए उनको 2-2, 3-3 लाख रुपया दिया गया था। वहां पे उनको वो एलसीडीज वगैरह दी गई थी, उनको एलसीडीज पे पढ़ाया जाने के लिए कि आपने किस तरह बच्चों को पढ़ाना है। मैं कहता हूं कि राशन से बाहर निकलो। ये जो राशन, आप सिर्फ राशन की बात करते हो, राशन से बाहर निकलो। आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जब उनको आंगनवाड़ी सेंटरों में अच्छी तालीम दी जाएगी तो मैं कहता हूं कि वो आगे जाके कुछ पढ़ेंगे। लेकिन हमने सिर्फ राशन पे ही अपनी नजर महदूद रखी है कि हाँ जनाब, बेसिक एजुकेशन जो बच्चे को मिलती है वो आंगनवाड़ी सेंटर से मिलती है। इसलिए सरकार ने आंगनवाड़ी सेंटर उस टाइम खोला, और बच्चे की जो न्यूट्रिशन है, बच्चे की नशोनुमा के लिए वो जो खुराक है वो भी उनको दिया जाता था। एक तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए जनाब, अभी कोई भाई मुझे उनके साथ उतना तारुफ नहीं, वो कहते थे इनकी सैलरीज वगैरह कुछ कम नहीं है। आप यकीन मानो, मैंने 4 साल गवर्नमेंट स्कूल में स्वीपर का काम किया है और मुझे तनख्वाह मिलती थी 25 रुपए, और सुबह उठ के मैं स्कूल साफ करने जाता था। यार, जब सरकार आपको पैसा देती है तो उसने आपसे काम लेना है। उसके मुकाबले में आपको 1000 रुपया सैलरी है या 500। जिस वक्त फॉर्म की पोस्ट, जब फॉर्म फिल करना होता है, जब फॉर्म निकलता है, उस वक्त तो आप बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाते हो, उस वक्त तो आप लाखों के हिसाब से पैसा देते हो। उस वक्त आपको पता नहीं होता है कि वहां पे आपको 5,000 तनख्वाह या 3,000 या 4,000 है। आप एनवाईके को आप देखो, एक एनवाईके वाले को 2,500 तनख्वाह है, लेकिन पूरे महीने वो ड्यूटी देता है। यहाँ पे अगर उसको तहसील में लगाया जाता है, किसी एनवाई के वाले को एजुकेशन में लगाया जाता है, किसी को ट्रैफिक में लगाया जाता है, लेकिन 2,500 पे भी उनसे काम लिया जाता है। यार, अगर सरकार आपको पैसा देती है तो आपने उस पैसे को हक को हलाल करना है और उसके लिए ड्यूटी देनी है। और या कोई सरकार ने आपको टाइमिंग तो नहीं दी है कि आप सुबह हफ्ते में 2 ही दिन आंगनवाड़ी सेंटर को जाओ और 5 दिन घर में बैठो। उसके लिए तो पूरा महीना होता है। वही पहले ही फारूक साहब ने पूरे आपको पूरे छोटे छोटे वो लफ्जों में आपको समझाया कि एक आंगनवाड़ी वर्कर का क्या काम होता है। और दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा, जब आप अपने बच्चों को हक की खिलाएंगे, हक और हलाल की खिलाएंगे, तो आपकी नस्ल जो है वो अच्छी निकलेगी। देखिए, एक लुकमा आप हराम खाओ, टंकी है, टंकी में आप एक कतरा पेशाब डालो या पूरी बोतली पेशाब की डालो, पानी तो खराब होना ही होना है। अगर आप हराम का 1 रुपया खाओ या करोड़ खाओ, वो तो हराम ही है।
तो इसका कोई जवाजियत नहीं निकलती है कि तनख्वाह कम है या खाली राशन है या कुछ है। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस डिबेट के माध्यम से, आंगनवाड़ी पे अगर बात चल रही थी तो आंगनवाड़ी खाली राशनों के लिए नहीं है, बल्कि वो एजुकेशन, जो छोटे बच्चे उनको तालीम देनी है, उनको तैयार करना है स्कूल के लिए, बेसिक एजुकेशन उनको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। एक तो वो, दूसरा हर एक, देखिए हर एक इस वक्त जिम्मेदार है अपने इलाके का, अपने गांव का, अपने आप का, अपने कुंबे का। तो हम क्यों बार बार फारूक साहब को फोन करने बैठे, फारूक साहब ये आंगनवाड़ी बाई ये जीआरएस काम करन। यार आप जब खाना खा सकते हो, जब आप पी सकते हो, जब आप हर एक चीज कर सकते हो, तो फिर आप इतना काम नहीं कर सकते हो। आज तो आपके पास डिजिटल, आपने अगर पीएम का नंबर लाना है, पीएम का नंबर भी आप गूगल से निकाल सकते हो। फिर किसी बीडीओ का या एसीडी का या डीसी का किसी का नंबर क्यों नहीं ला सकते हो? यह है कि मतलब शिकार करना है, लेकिन किसी के कंधे के ऊपर। हमने फारूक साहब को इल्म होगा, एक वक्त में हमने इधर घाट ब्लॉक में, शायद फारूक साहब आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, अपर आरनोरा में वो विजिलेंस वाले आए थे, और जो जिस जिस बंदे का वो विजिलेंस का केस था, बाद में वही बंदा बिक गया था। हम बीच में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमें बोलने लगे यार तुम कौन हो? उसने बंदे ने बाहर जाके वहां पे उसको एफिडेविट देके विजिलेंस वालों को, नहीं जनाब यहाँ पे सारा साफ शफाफ है, और ये लोग इतने तेज बने हुए हैं। इसलिए हर एक इंसान को चाहिए कि अपनी ड्यूटी जो है खुद निभाए, और जब वो अपनी ड्यूटी निभाएगा तो आप देखना सब खुद ब खुद आपके घरों से इनकलाब शुरू होगा। लेकिन बाद में हम बोलेंगे नहीं जनाब अब ये है अब वो है। देखिए जवाजियतों से कुछ नहीं निकलता है, हम हर चीज में जवाजियत निकालते हैं, हर चीज में हम मतलब वो है ना कि थोड़ा थोड़ा से जहाँ पे हमको नरम नरम मिलेगा उसको हड़प करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे सख्त मिलेगा उसको बोलेंगे। अभी फारूक साहब ने वो लाल किताब, और मुझे याद है कि जब भी फारूक साहब क्लास में हमें पढ़ाते थे और ये बात जरूर बोलते थे, वो मौलवी की कहानी अब लाऊंगा मैं, वो लाल किताब खोलूंगा, ये गधा हलाल है कि हराम है। वो तो पता है उसको कि उसने क्या किया है। या वो ढोलकी वाला सिस्टम, एक साइड बजाएंगे तो ये ऐसे बजानी है, तो दूसरी तरफ बजाएंगे ये बजाएंगे, क्योंकि उसने तो मन्नत मांगी थी मैंने मस्जिद में ढोलकी बजानी है, और मस्जिद में ढोलकी बजाना हराम है। अब उसने सोचा कि अब लोगों को कैसे मैं मनाऊंगा, उसने लाई ढोलकी, उसने बोला देखो यहाँ से बजाओ ये भी हराम है, यहाँ से बजाओ ये भी हराम है। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए जो हमारी ड्यूटीज है, हम लोगों को अपनी ड्यूटीज से कभी भी भागना नहीं चाहिए। जो हमारी, फिर देखिए आप खुद ब खुद हमारा माशरा भी सीधा हो जाएगा, हमारा घर भी सीधा हो जाएगा। और मैं शायद पे एक बात कहना चाहूंगा, और आपका खुद अपना जो है म्यूट है इस्माइल भाई। मैं अच्छा देखिए अच्छा, फारूक साहब, मैं थोड़ा फारूक सा जी जी एक बात, फिर बात भूल जाएगी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए मेरे भाई, आप कह रहे हैं 15 साल से या 1 साल से कोई सेंटर बंद है, और उसके अंदर जो सदीक ने कहा कि वो जो है किंडरगार्टन स्कूल जो हुआ करते थे, उनमें क्या होता था कि उन बच्चों को हमेशा पले हुए मेथड से उनको एजुकेट करना होता था। वो कि एक मतलब समझे, एक गार्डन जो था वो बाग था, या उसके बीच में लोगों को, बच्चों को एंजॉय करना, एंटरटेन करना, और चलते फिरते उनको जो है वो यानी एक तालीम की तरफ रागिब करना था। मैं सिंपल ये कहना चाहता था कि पुरानी हुकूमतों ने इसलिए इन चीजों पे, इन स्कूलों पे, नरेगा पे या और कहीं पे एक्शन इसलिए नहीं लिया था कहीं लोग वाकईतन एजुकेट ना हो जाएं। देखो एमजी नरेगा के जो लोग मुझे आज सुबह फोन कर रहे थे, और एक शाम के वक्त पता क्या पूछ रहा है, बड़ा दुखी हो जाता है, कहते फला जनाब फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फला ने आपको फोन किया था? मैंने कहा हाँ किया था। वो क्या बोल रहा था? मैंने कहा आप क्या कोई विजिलेंस वाले हो, मुझे पूछोगे वो क्या बोल रहा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा अपनी अपना बोल, तेरी क्या प्रॉब्लम है वो बोल, मैं उसका हल बताऊंगा। पहले मैं वो पुराने वाले की दास्तान सुनाऊंगा, उसमें से वो कुछ पॉइंट निकालता, फिर वो मुझे ही दाग देता और मुझे ही कहता आप मेरा काम भी इसी तरीके से करो जिसका। तभी मैंने कहा ना, मैं केएस और आईएएस ऑफिसर के साथ बात करूंगा, वो आसान है, लेकिन इन बंदों के साथ बात करना बड़ा टफ जॉब है, बहुत मुश्किल है। मैंने उसको बड़ा सख्त डांटा। मेरे फैमिली मेंबर्स यहाँ देख रहे थे, यार आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा देखो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ
मैंने कहा नरेगा कब आया है? कहता मुझे पता नहीं। मैंने कहा 2005 में आया? कहता हाँ आया। मैंने कहा आज हो गए 20 साल, तुझे 20 साल से ये इल्म नहीं हुआ जो 100 दिन का रोजगार सरकार ने तुझे दिया है, इसकी स्कीम, इसकी पॉलिसी को आज तक नहीं समझे आप? कहते इनको रोब से बात मत करो। मैंने कहा हद होती है हर चीज की, ये हर शख्स को मिसयूज करते हैं। लेकिन 20 साल इन्होंने इल्म हासिल नहीं किया कि हम अपने जॉब कार्ड जो है 100 दिन की गारंटी जो दी है सरकार ने, उसको हम समझें, हम सीखें। हर बार इनको जीआरएस जो है वो ठगता है, सेक्रेटरी ठगता है, जेई ठगता है, हैं? और 20 साल से जो ये शख्स एक काम के बारे में नहीं जान सका, अब आइंदा 20 साल में इसने क्या करना है, क्या सीखना है इस शख्स? और पता है साबका सरकारें इनको कहती थी ये नरेगा सिर्फ आपके लिए है, आप करो या मत करो, ये सरकार ने देना ही देना है। बस ये गाफिल नींद में सो जाते थे, वो लुटेरे जो थे वो उसको 2-2 हाथ नरेगा को लूटते थे। आंगनवाड़ी सेंटर वालों को कहा था बस इसमें राशन आता है, बस जब गांव वालों को थोड़ा सा, हम जैसे लोगों को राशन मिलता था, हमने कभी तालीम का जिक्र ही नहीं किया। हमने ये सोचा ही नहीं कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज को या फीडिंग मदर्स को या एडोलसेंट गर्ल्स को वहां जाना है तो मैडम ने उनको सोशल एजुकेशन देनी थी, उनको हाइजीनिक एजुकेशन देनी थी कि एक प्रेग्नेंट मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है किन किन चीजों का एहतियात करना है, उसको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, उसको कैसे एहतियात के साथ जो है ये 9 महीने गुजारने। नौजवान लड़कियों को उन्हें ये बताना था कि आप अब नौजवान हो रहे हो, आपको जो है कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, कुछ टेक्निकल एजुकेशन सीखनी चाहिए, दर्जन का काम सीखें वो, चाहे वो क्या कहते हैं वो बुनाई का काम सीखे, चाहे वो स्वेटर्स बनाएं या और कुछ जो उनकी लाइफ के रिलेटेड इश्यूज थे वो समझाएं उनको। लेकिन नहीं, इन लोगों को इतना ही कहा गया था। यही तो कमाल है, इनकलाब किस बात को कह रहे हैं आप? सेंटर जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स हम स्कूलों की तरह उनको चलाएंगे। और एमजी नरेगा देखिए गाफिल नींद में इन लोगों को रखा था, इनको पता ही नहीं था हमारी अटेंडेंस में कभी फोटो भी उठाए जाएंगे, हैं? इनको पता ही नहीं चला। अब जीआरएस के हाथ में कुछ है ही नहीं, अब सेक्रेटरी के हाथ में कुछ है ही नहीं। अब पेमेंट जो है जेई को दी और जेई को ऐसे फंदे में डाला है कि पहले एमबी बनाओ, ईएमबी, जब वहां प्रोग्रेस होगी तब जॉब कार्ड होल्डर को हम पैसे देंगे, प्रोग्रेस नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस शो के माध्यम से उन तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स को भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी और आम जनता को भी ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने आपको गुमराह किया था। ये झूठ कहा करते थे कि ये सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। नहीं, आज की डेट में सरकार जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है चाहती है कि हमारा जो पैसा जाए डायरेक्ट उस जॉब कार्ड होल्डर को जाए जिसका जॉब कार्ड है, किसी और के पास ना जाए। अब हमारी सोच कुछ अलग है, सरकार की सोच कुछ अलग है, तो इसलिए इल्म का होना बहुत लाजमी है। इल्म हासिल करने के लिए अगर चाइना भी जाना पड़े तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। तो हमें जानना चाहिए। मैं इस शो के माध्यम से हर जॉब कार्ड होल्डर को ये कहना चाहूंगा कि वो अपने 100 दिन के रोजगार के सिलसिले में पूरे कानून को जाने, पूरे उसूलों को जाने, ताकि उसको कोई धोखा ना दे। बार बार धोखा दिया जा रहा है डिमांड के सिलसिले में, अप्रूवल के सिलसिले में, न जाने किस किस के सिलसिले में। अब एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल मुझे ही लीजिए, मैं भी इस पंचायत से कम 15,000 जॉब कार्ड होल्डर्स के इश्यूज को कैसे संभाल सकता हूं? अगर हर जॉब कार्ड होल्डर अपने इशू को, अपनी परेशानी को खुद हल करना सीखे तो आइंदा और कोई डेवलपमेंटल वर्क हम करेंगे। वरना 20 साल हमें हो गए इसी जॉब कार्ड के चक्कर काटते काटते, ना हम आपको मतलब समझा पाए और ना आपने खुद समझने की कोशिश की। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ से ज्यादा जो है आप इल्म हासिल करें ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई धोखा ना दे। बाकी रहे आंगनवाड़ी सेंटर, मैंने कहा एमएलए साहब आएंगे, एक पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी, आंगनवाड़ी सेंटर्स तमाम ओके हो जाएंगे। और एक चीज कहना चाहूंगा लास्ट पे, जिस तरह कहते हैं कि बहुत कम राशन मिलता है आंगनवाड़ी वर्कर्स को सेंटर्स के लिए, डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो स्कूल के मिड डे मील के पैटर्न पे जो है उनको भी राशन दे।
स्कूलों में मिड डे मील्स जो बनता है उसका पता क्या तरीका है? हेडमास्टर को बता दिया है कि आपके जितने बच्चे हैं उनके लिए आप दुकानों से राशन खरीदें और हमें जो है बिल आप दे दें ताकि हम मंथली आपको पेमेंट करेंगे मिड डे मील की। आंगनवाड़ी वर्कर को भी ऐसे ही करें। क्यों वहां से एक कनस्तर वो जो है वो 1 गैलन तेल लाते हैं तो बोतलों में बांट के देते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को। आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ये एक बिल पास किया जाना चाहिए कि इनको भी इजाजत दी जाए कि मिड डे मील की तरह डेली बेस पे ये बच्चों को वहां पे जो है यानी वो मिड डे मील भी दें, दोपहर का खाना भी दें और साथ में तालीम का काम भी जो है चलता रहे। और बहुत सारा मटेरियल जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए दिया गया है। अगर आज भी हम वो जो है वो रजिस्टर जो उनके पास जो होगा ना आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर की उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो ये क्या बताएंगे इसको सेटिंग के लिए जो इनको मिलता है ये फर्नीचर वगैरह जो कुछ भी सामान मिलता है, तो इनका अगर हम वो स्टोर का रजिस्टर देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, वहां बहुत ज्यादा जो है वो सामान निकलेगा। अब देखेंगे, हम चेक करेंगे, आने वाला वक्त आने दो, हम हर एक और मैं ये बताना अपनी तरफ से बताऊंगा, इंशाल्लाह एमएलए साहब भी वैसे करेंगे। हम हर आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए एक कमेटी बनाएंगे उस मोहल्ले के अंदर। वो जब कमेटी जो है हमें रिपोर्ट करेगी तब जाकर हम आईसीडीएस ऑफिसर को बता देंगे कि इनकी सैलरी जो है वो रिलीज की जाए। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाएगा तो उनकी सैलरी तब तक बंद रहेगी जब तक वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। ये मेरी तरफ से एक सुझाव है एमएलए साहब को। इंशाअल्लाह जब मुलाकात होगी तो हम ये सब सजेशंस उनके सामने रख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हो सकता है कि जवाब से किसी और एक बात बोलूंगा कि हमारे पंचायत दरब्बी वार्ड नंबर 3 में 200 घर हैं, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर नहीं। ये नजर में रखना है एमएलए साहब से, इस बारे में बात करना कि यहाँ के लिए एक आंगनबाड़ी सेंटर। और लास्ट पे आपसे मेरा एक सवाल रहेगा फारूक साहब, नरेगा में जिस जगह पे जियो टैग की जाती है, अगर वो 12 जॉब कार्ड होल्डर है, अगर वो उस जियो टैग जहाँ पे की जाती है वहां से तो वो हाजिरी लगा लेते हैं ऐप से, लेकिन अगर उनको डंगा वो अलग अलग जगह पे दे रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे अपनी अपनी खेतों में दे रहे हैं, क्या वो चलेगा फारूक साहब? देखिए, अब वो चले या ना चले, चलाएगा वो जो दिला रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिलाना, कि नहीं? जी, हमारा नहीं है। अगर उसको वहां गांव के लोग उसी कंडीशन पे मुतमईन हो जाते हैं तो अगर वो चला पाता है तो चलाए, फारूक साहब वरना उसका ये काम था कि जहां जियो टैग किया था वहीं काम करना था, वहीं काम कराना था, कोई आता या नहीं आता। उसका काम ये नहीं था कि सब लोगों को राजी करना, हमने लोगों को काम देना है। वो जहां पे वो पहले जियो टैग कराते हैं वहीं पे काम भी होना चाहिए, कि नहीं? अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो गलत है। अब अगर एक जीआरएस एक सेक्रेटरी निभा लेता है, जनता भी राजी रहती है और वो भी उस मसले, कल ऐसा ना हो कि उनके पेमेंट्स के सिलसिले में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो बाकी अगर सर वही हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे वही हुआ, जियो टैग एक जगह की गई लेकिन उनको बोला गया आप अपने अपने खेतों में कर सकते हो काम। अब जब पेमेंट तो देखो, मैं ऑनलाइन ये कहता हूं कि जो गलत करवाता है उसको बांध के लाओ और कानून के हवाले कर दो, चाहे वो कोई भी हो जी। जो जनता को गलत कराता है, खुद गलती कराता है और फिर सजा भी उन्हीं को दिलाता है, ये तो गलत है भाई। क्या मजबूर है जीआरएस या सेक्रेटरी या जेई? जहां उन्होंने जियो टैग किया है वहीं पे काम भी कराओ। जहां लोगों ने उस वक्त जब इजलास हुआ था, जहां काम लिखवाया था, ठीक उसी सिपाट पे काम होना चाहिए। फिर अगर लोगों का मूड बदलेगा तो हम क्या लोगों के मूड के मुताबिक चलेंगे? इजलास तभी किया जाता है, सबको बुलाया जाता है कि भाई आओ अपने अपने काम लिखवाओ, कहां आपको काम करवाने हैं। जो इजलास में नहीं आते हैं, जब काम आते हैं उस वक्त काम ढूंढते हैं, उनको भाई जाओ भाई वहां डिमांड लगी है करो। जिस दिन इजलास था आप क्यों नहीं आए थे? उस दिन खुद अपना काम क्यों नहीं रखवाया था? आज जब हम कुछ एंटर कर ही नहीं सकते प्लान में, तो पहले क्या होता था ना, एमएलए वोटर के लिए मजबूर हो जाता था, वो गलत करता था। लेकिन इस बार महाराज ने वो सोच चेंज कर दी, उसने इनकलाब की सोच लाई है। अब हम वोट के लिए सियासत नहीं करते, हम तरक्की के लिए सियासत करते हैं। मौका मिला है और जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर वो पत्थर मारेंगे लोगों के ऊपर, दूसरों के सर फोड़ेंगे, तो हम उनके साथ नहीं है। हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं।
कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। जब हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, आम आदमी पार्टी का अगर वो हमदर्द है फिर भी उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो फिर हमारी ईमानदारी को और इंसाफ को देखकर हजारों नए हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है जालिम का साथ देंगे अगर वो हमारा अपना है, नहीं। जो भी गलत पाया जाएगा, फरमाया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक जगह वो एक तहकीकात हो रही थी, तो मुख्तसर सा ये कहना चाहूंगा कि एक यहूदी की बेटी का नाम भी फातिमा था और इनकी बेटी का नाम भी फातिमा था। तो उन्होंने मुख्तसरन कहूं कि अगर इस जगह मेरी फातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ जो है काट देता अगर उसने भी चोरी की होती। तो तभी जाकर जो है उन लोगों का नाम तारीख में लिया जाता है। आज भी अरबों की हंसी, मिलियंस में अरबों की तादाद में लोग उनके फॉलोअर्स क्यों हैं? उन्होंने इंसाफ किया था। और अगर हम इंसाफ करेंगे तो दुनिया जो है हमारे साथ रहेगी। अगर हम इंसाफ में कहीं जो है नाइंसाफी करेंगे लोगों के साथ, तो हमें भी लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए मजबूरी नहीं, अल्लाह ताला किसी और को ले आएगा अगर हम कहीं जो है पार्शलिटी करेंगे, तरफदारी करेंगे, अपना अपना और पराया पराया करेंगे। मीठा मीठा हड़प और कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं हमारे यहाँ होगा। हमने सबसे पहले अपने रब को राजी करना, उसके बाद सब अगर वो हक पे हैं तो राजी, या ना हक हैं तो वो भी अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे। जी 9:30 बजे फिर मिलते हैं लाइव शो में। उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें वाच करते हैं और जो हमारे साथ आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं। इसका मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा, जब तक हम हक पे हैं हमारे साथ रहिएगा। जिस दिन आपको लगेगा कि हम हक से जो है भटक रहे हैं, हमारी इस्लाह के लिए हमें बाखबर भी कीजिएगा। अगर हम बाज नहीं आएंगे तो हमें इग्नोर कीजिएगा, हमें नजरअंदाज कीजिएगा, गलत साथ हमारा भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने आपने भी आखिरत में हिसाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।